Ignited Minds Tutorials is bridging the gap between students and quality education with its enlightening series of video lectures on the topic of mechanical properties of fluids, physics for IIT/CBSE Class 11/Maharashtra State Board Class 12. Fluid mechanics, a fundamental branch of physics, studies the behavior of fluids under different conditions, and understanding its mechanical properties is crucial. These video lectures simplify complex concepts with detailed explanations, making them accessible to students of all levels. By covering topics such as pressure, viscosity, surface tension, buoyancy, and fluid dynamics, students gain a holistic understanding of fluid mechanics. The tutorials cater to the specific requirements of IIT aspirants, CBSE Class 11 students, and Maharashtra State Board Class 12 students. The comprehensive approach of these lectures ensures that students thoroughly comprehend the subject matter, strengthen their analytical skills, and prepare effectively for their exams. The videos not only cover theoretical explanations, but also provide practical examples and problem-solving techniques. By presenting real-life applications of fluid mechanics, students develop a deeper appreciation for the subject and its relevance in various fields. Ignited Minds Tutorials' commitment to delivering quality education is evident through their systematic and knowledge-oriented approach. With their series of videos on the mechanical properties of fluids, students receive a valuable educational resource that empowers them to excel in their academic pursuits and ignite their minds for a brighter future. A piece of pure gold which has got a density of, gold की density यहाँ पे दी हुई है भाई साहब, gold की density यहाँ पे दी हुई है 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, is suspected to be hollow from inside. ठीक है, तो मतलब अंदर से ये hollow है. ठीक है, तो let's say this is the piece of gold which is basically hollow from inside. ठीक है, भाई साहब जिसने भी बनाया रहेगा अपना बचाया है इसने. ठीक है, ओके. Suspected to be hollow from inside. It weighs. इसका भाई साहब वेट कितना दिया हुआ है? Weight is given as, weighs क्या है? मास है बेसिकली, क्योंकि ग्राम दिया हुआ है यहाँ पे. तो मास ऑफ दिस गोल्ड इज हाउ मच? 38.25 ग्राम्स. ठीक है, इन एयर. और यहाँ पे वाटर में इसका, तो m-g हम यहाँ पे लिख रहे हैं, मतलब वाटर में इसका वेट. ठीक है, वाटर में इसका वेट कितना है? 33.865 ग्राम्स. ठीक है, ओके. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द हॉलो पोर्शन इन गोल्ड इफ एनी. तो आपका हॉलो पोर्शन कितना है? अगर गोल्ड में ऐसा हॉलो पोर्शन है तो उसका कितना हो जाएगा भाई साहब? ठीक है, सो पहले तो हम बात करेंगे भाई साहब यहाँ पे एपरेंट वेट कितना है. एपरेंट वेट मतलब कितना हो जाएगा? बोलो. एपरेंट वेट का हमने कल फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या था? बोला 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 जल्दी से बोलो. एपरेंट वेट इज इक्वल टू W इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन लिक्विड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड. आप अगर इसको कलर में ऐसे डिराइव किया था ना, सिग्मा अपॉन रो, यही था ना. तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉरी रो अपॉन सिग्मा. ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम तो एपरेंट वेट यहाँ पे कितना है आपका? देखो 33.865 और वेट कितना है आपका? 38.25. ये आपका एक्चुअल वेट है. 1 माइनस रो, डेंसिटी दी हुई है भाई साहब 19.3, और यहाँ पे भाई साहब आपका सिग्मा दिया. तो फाइंड क्या करना है? व्हाट इज इट दैट यू हैव टू फाइंड? नहीं, डेंसिटी ऑफ सॉलिड दिया हुआ है ना, 19.3 दिया हुआ है, हॉलो की पोर्शन. तो कैसे फाइंड करेंगे? सारी चीजें जो भी आपको है, क्या ये मालूम है आपको एपरेंट वेट? यस. क्या वेट मालूम है? यस. इज दिस नोन टू यू? दिस इज ऑल्सो नोन टू यू. सो व्हाट इज इट दैट यू हैव टू कैलकुलेट एंड हाउ विल यू कैलकुलेट इट? यहाँ पे आपको कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द हॉलो पोर्शन इन गोल्ड इफ एनी. अगर हॉलो पोर्शन का कितना होता है? हाँ, ओके. फिर ओके, ओके. तो हम पहले निकालेंगे भाई साहब वॉल्यूम.
इस गोल्ड पीस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, बोलो वॉल्यूम कितना होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बोलो? मास अपॉन डेंसिटी, है ना, मास अपॉन मास ऑफ द गोल्ड पीस, ठीक है, अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द गोल्ड पीस, ये मास, ये वाला मास की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो वॉल्यूम इन एयर जो उसका है, दैट विल बी हाउ मच? 38.25 अपॉन 19.3 जा रहा है क्या भाई साहब? देखो डिवाइड करके नहीं जाएगा यार, 2 पॉइंट कुछ होगा, कितना आ रहा है देखो, कितना आ रहा है? 38.25 डिवाइड बाई 19.3, 1.98। तो वॉल्यूम कितनी हो गई भाई साहब यहाँ पे? 1.98। 1.98 कितना भाई साहब? सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। दिस इज 1.98 सेंटीमीटर क्यूब। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। अभी अपन को भाई साहब वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस निकालना है। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ये भाई साहब कितना हो जाएगा? या अपन सीधा सीधा ये निकाल लेते ना, मास ऑफ और वेट ऑफ, ठीक है, यही आपका अपथ्रस्ट होगा ना भाई साहब, ठीक है। वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ये भाई साहब कितना होगा? सीधे साफ लफ्जों में बताओ ये कितना होगा? अपथ्रस्ट कितना हो जाएगा? दिस माइनस दिस इंटू जी, है ना। तो अगर वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस आप निकले जा रहे हैं तो ये हो गया आपका वॉल्यूम, ठीक है, इनटू रो, ठीक है, रो ऑफ वाटर इनटू जी, ये हो जाएगा भाई साहब, है ना। ये आपका वाटर का डेंसिटी है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये वाटर का डेंसिटी। और किसके बराबर होगा ये? दिस वॉल्यूम इनटू रो ऑफ वाटर इनटू जी, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? हाँ, वॉल्यूम रो ऑफ वाटर इनटू जी, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? वॉल्यूम हो गया ये रो ऑफ वाटर इनटू जी, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ये हो जाएगा ना भाई साहब। देखो कितना है, यही अपथ्रस्ट होगा ना। व्हाट विल बी द अपथ्रस्ट? अपथ्रस्ट मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? इसका जो एक्चुअल वेट है उससे कम लग रहा है इसमें, क्यों लग रहा है भाई साहब? तो अपथ्रस्ट कितना हो जाएगा? दिस माइनस दिस, कितना आ रहा है देखो, इसको माइनस करो, 38.25 से 33.865 को माइनस करो, तो 38.25 माइनस 33.865 इंटू जी, ठीक है, इंटू जी, ये जी और जी भाई साहब हो जाएंगे आपके कैंसिल, ठीक है। तो आपका यहाँ पे वॉल्यूम कितना निकल रहा है भाई साहब? बोलो ना, बोलो, अरे बोलो भाई साहब, कितना निकल रहा है? ये कितना है? 4.385। चलिए भाई साहब, तो ये आ गया आपका कितना? 4.385 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये कितना है भाई साहब आपका? वॉल्यूम किस में है? दिस इज बेसिकली ग्राम। डेंसिटी ऑफ वाटर इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक कितना होता है? डेंसिटी ऑफ वाटर इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, आपका डेंसिटी ऑफ वाटर इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। और डेंसिटी ऑफ वाटर अगर केजी पर मीटर क्यूबिक में चाहिए तो 1000 केजी पर मीटर क्यूबिक होता है। तो अपन यहाँ पे भाई साहब ग्राम से डील कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आपकी वॉल्यूम कितनी आ गई भाई साहब? 4.385 सेंटीमीटर क्यूबिक। और यहाँ पे आपका वॉल्यूम कितना आ गया भाई साहब? दिस इज 1.98 सेंटीमीटर क्यूबिक, 1.98 सेंटीमीटर क्यूबिक। क्या वॉल्यूम में घपला है? वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 1.98। आपका भाई साहब कैलकुलेशन के हिसाब से कितना आ रहा है? 4.385। तो कितने का घपला है भाई साहब? दिस माइनस दिस, मतलब इतना एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो आपको दिख रहा है वो हॉलोनेस से आ रहा है। समझ में आ रहा है? उसको भाई साहब अंदर हॉलो है वो, ठीक है, उतना हॉलोनेस से वॉल्यूम आ रहा है। कितना है? सो दैट विल बी द, तो आपका ये, इसको वी डैश लिख दे भाई साहब, चलिए वी डैश लिख देते हैं, ठीक है, वी डैश। तो ये आपका वी डैश माइनस वी कितना आ रहा है भाई साहब आपका? 4.385 माइनस 1.98, 403 आया इधर, ठीक है। 2.405 सेंटीमीटर क्यूबिक अगर हम देखेंगे, दिस वुड बी द एक्स्ट्रा वॉल्यूम, मतलब इतना हॉलो है, ठीक है, इतना हॉलो पोर्शन है उस गोल्ड के अंदर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको कीजिए जरा फटाफट।
तेजस चुपके से टपक टपक, बहुत बढ़िया भाई साहब। चलो जल्दी 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 फटाफट, आसान सा सवाल है। हो गया, डन डन डन। अ सॉलिड बॉडी फ्लोटिंग इन वाटर, एक सॉलिड बॉडी है, ये वाटर में फ्लोट कर रहा है 1/6 ऑफ द वॉल्यूम अबव द सरफेस। ठीक है, तो भाई साहब कितना सबमर्ज है, सबमर्ज पोर्शन कितना होगा? हाँ 5/6 पोर्शन। ठीक है, सो सबमर्ज पोर्शन, सबमर्ज पोर्शन, तो सबमर्ज्ड पोर्शन आपका कितना हो जाएगा भाई साहब? तो लेट से बॉडी का वॉल्यूम, लेट वॉल्यूम ऑफ बॉडी, लेट वॉल्यूम ऑफ बॉडी बी वी। ठीक है, तो सबमर्ज पोर्शन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई साहब? 1 माइनस 1/6 इंटू वी, दैट इज हाउ मच? 5/6 वी, है ना। और आपका फॉर्मूला क्या है भाई साहब? सबमर्ज पोर्शन अपॉन टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू हाउ मच ऑफ पीपलम? डेंसिटी ऑफ सॉलिडम अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विडम। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। याद है कि नहीं भाई साहब, ये अपन ने डिराइव किया था। ठीक है, दिस, ठीक है, तो सबमर्ज पोर्शन अपॉन टोटल वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये अपन ने किया था। ठीक है, ओके ओके ओके, अरे ओके ओके ओके। तो सबमर्ज पोर्शन अपॉन टोटल वॉल्यूम, सबमर्ज पोर्शन की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 5/6 वी अपॉन वी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यहाँ पे भाई साहब वाटर की डेंसिटी कितनी है? 1m। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ सॉलिड, तो इससे भाई साहब आपका क्या आ जाएगा? डेंसिटी ऑफ सॉलिड आ गया, कितना है भाई साहब आपका? 5/6। 5/6 मतलब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक होगा, दैट कैन बी रिटन एज, यहाँ पे उसको तो फिलहाल निकालने नहीं बोला है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो ये आपका हो गया भाई साहब डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 5/6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। तो 6 8 48, 6 2 12, हो गया 5/6। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 5/6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम विल प्रोजेक्ट अपवर्ड इफ इट फ्लोट्स इन अ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2। अभी लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दी हुई है भाई साहब? 1.2। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड ये कितना है भाई साहब आपका? 1.2। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इज 1.2। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कितना हो जाएगा?
डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये कितना हो जाएगा 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड विल बी हाउ मच 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, ठीक है। ओके, सो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दिस वॉल्यूम विल प्रोजेक्ट। अभी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड हो गया ये भाई साहब आपका PL, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज 1.2। ओके, तो रिलेटिव डेंसिटी मतलब समझते हैं ना, व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आपका भाई साहब ये रिलेटिव डेंसिटी आपका कितना दिया 1.2, मतलब ये वाटर के 1.2 टाइम्स है, तो इसका मतलब डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी ये है। ओके, तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन विच द सॉलिड इज गेटिंग सबमर्ज्ड इज दिस मच, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम विल प्रोजेक्ट अपवर्ड्स। तो पहले अपन देखते हैं कितना वॉल्यूम भाई साहब सबमर्ज रहेगा अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। डेंसिटी ऑफ द सॉलिड आपने कितना निकाला है भाई साहब 5/6, ठीक है, अपॉन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड दैट इज 1.2, ठीक है। ओके, तो अपन इसको करते हैं तो V डैश बाई V, ये कितना आ रहा है V डैश डैश बाई V, तो ये हो गया भाई साहब आपका 5/6 इंटू 1.2 टड़ंग 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 12 6 72, ये बहुत खतरनाक सा कितना आ रहा है इसका देखो जरा फटाफट 50/6 इंटू 12 है ना, तो 2 3 6 2 25 50, 25 अपॉन 24, 25 नहीं 36, 25 अपॉन 36, इसका कीजिए जरा फटाफट 0.69, ठीक है। तो V डैश डैश बाई V, अभी ये क्या है भाई साहब फ्रैक्शन ऑफ सबमर्ज्ड पोर्शन। तो फ्रैक्शन ऑफ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम इन प्रोजेक्ट अपवर्ड, तो फ्रैक्शन प्रोजेक्टिंग अपवर्ड, फ्रैक्शन प्रोजेक्टिंग अपवर्ड, दैट विल बी हाउ मच 1 माइनस V डैश डैश बाई V, ठीक है। 1 माइनस 0.69, ये कितना हो जाएगा भाई साहब 0.9 प्लस 1 10, 0.31, ठीक है। तो फ्रैक्शन प्रोजेक्टिंग अपवर्ड विल बी 0.31। क्लियर पीपल। या इसको भी कर सकते हैं, देखो ये 25/36 था, अगर हमने इसको भी किया होता, देखो 1 माइनस हमने ये किया है, अगर इसको करना है तो फ्रैक्शन प्रोजेक्टिंग अपवर्ड विल बी 1 माइनस 25/36 दैट इज 11/36। यही सेम आंसर आएगा 0.31 और 11/36, इट्स वन एंड द सेम थिंग। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। A spring balance reads 10 kg when a bucket of water is suspended from it, ठीक है। What is the reading on the spring balance when the ice cube of mass 1.5 kg is put into the bucket? चलिए भाई साहब इसको करना है। तो ये हो गया भाई साहब बकेट, और इसमें कितना है भाई साहब स्प्रिंग बैलेंस रीड्स 10 kg, तो इसका भाई साहब कितना है 10 kg, ठीक है। व्हेन अ बकेट ऑफ वाटर, तो इसमें भाई साहब क्या है बकेट ऑफ वाटर है, ठीक है, इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट, तो एक बकेट ऑफ वाटर है, जब आप इसको स्प्रिंग बैलेंस से सस्पेंड कर रहे हैं इट इज रीडिंग 10 kg, ठीक है। व्हाट इज द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन एन आइस क्यूब ऑफ मास 1.5 kg इज पुट इनटू द बकेट, ठीक है। अभी आप भाई साहब क्या कर रहे हैं, आपने इस आइस क्यूब डाल दिया है, इस आइस क्यूब का मास कितना है, इस आइस क्यूब का मास है 1.5 kg इनटू द बकेट, ठीक है। क्लियर है क्लियर है क्लियर है भाई साहब। तो अभी स्प्रिंग बैलेंस का भाई साहब रीडिंग क्या होगा, ठीक है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, बोलो भाई साहब व्हाट विल बी द रीडिंग। 10 kg तो वो है ही, क्या अभी रीडिंग आपका 11.5 kg दिखाएगा, विल इट बी 11.5 kgs? अरे 10 kg का बकेट है पानी लेकर, उसमें तुमने 1.5 kg का भाई साहब क्या डाल दिया है आइस, सो विल द स्प्रिंग बैलेंस शो अ वेट और अ मास ऑफ 11.5 kg? यस यस, है ना उधर,
अरे बोलो भाई साहब। नहीं होगा। स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है? मास को मेजर करता है, और मास का कोई इन्फ्लुएंस वेट से नहीं है। वेट अलग चीज है। वेट इज अ फोर्स विथ विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अर्थ। स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है? सिर्फ मास को मेजर करता है, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस इज ओनली मेजरिंग द मास, इट इज ओनली एंड ओनली मेजरिंग द मास। मास का वेट से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या भाई साहब कितना मास दिखाएगा वो? दिस विल बी 1.5 प्लस 10, दिस इज गोइंग टू बी भाई साहब 11.5 kg। ये यही रीडिंग दिखाएगा, ठीक है, यही रीडिंग दिखाएगा ये, ठीक है। एन आइस क्यूब ऑफ मास 1.5 kg इज पुट इनटू द बकेट। ये अगर भाई साहब आपका ऐसा वाला बैलेंस होता, ये वाला बैलेंस होता, ठीक है, आपका ऐसा वाला बैलेंस होता, तब नहीं होता था ये, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस में भाई साहब सिर्फ मास वेट होता है, तो मास का वे कितना हो जाएगा भाई साहब? 11.5। अभी एन आयरन पीस ऑफ 7.8 kg सस्पेंडेड बाय अनदर स्प्रिंग इज इमर्स्ड विथ हाफ इट्स वॉल्यूम इनसाइड द वाटर इन द बकेट, ठीक है। एक और स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है। तो अभी भाई साहब क्या हो गया यहाँ पे आपका भाई साहब ये, ठीक है, ये पहले से था, ठीक है, ये स्प्रिंग बैलेंस था। ये दूसरा केस है, इसके साथ इसका कोई लेना नहीं है, ठीक है। एक और स्प्रिंग से अपन ने क्या किया हुआ है, हमने एक आयरन को यहाँ पे डाला हुआ है, एक आयरन नेल, ठीक है। एन आयरन पीस ऑफ मास 7.8 kg सस्पेंडेड बाय अनदर स्प्रिंग इज इमर्स्ड विथ हाफ इट्स वॉल्यूम इनसाइड द वाटर इन द बकेट। रिलेटिव डेंसिटी मतलब आपको दी हुई है, मतलब आयरन की डेंसिटी आपको दी हुई है कितनी? 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। इतना भाई साहब दिया हुआ है इसका, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस? अभी स्प्रिंग बैलेंस पे क्या रीडिंग होगा? बोलिए भाई साहब, बोलिए, यहां पे कितना रीडिंग हो जाएगा? आपने दूसरे स्प्रिंग से इसको सस्पेंड किया है, ठीक है। यहां पे क्या होता था? यहां पे तो वही रहेगा। दूसरे स्प्रिंग से अगर इसको सस्पेंड किया तो कितना होगा? हाँ नहीं, सेम नहीं होगा। अभी दूसरे स्प्रिंग से आपने सस्पेंड किया है, दूसरे स्प्रिंग से सस्पेंड किया, इसका नीचे का फोर्स कितना है? 7.8 किलोग्राम फोर्स, लेकिन इस पे एक अपथ्रस्ट लग रहा है, ठीक है, इस पे अपथ्रस्ट लग रहा है। देखो ये वाला कितना रिकॉर्ड करेगा, ये पूछा है आपसे। ये वाला कितना रिकॉर्ड करेगा, ये नहीं पूछा है, ठीक है। ये वाला तो वही रिकॉर्ड करेगा भाई साहब, लेकिन ये वाला स्प्रिंग बैलेंस अनदर स्प्रिंग है। देखो यहाँ पे एन आयरन पीस ऑफ मास 7 पॉइंट सस्पेंडेड बाय अनदर स्प्रिंग, दूसरे स्प्रिंग से हमने इसको सस्पेंड किया है, ठीक है। अनदर स्प्रिंग इज इमर्स्ड विथ हाफ इट्स वॉल्यूम इनसाइड द वाटर इन द बकेट। तो भाई साहब आपका क्या स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग क्या हो जाएगा? तो अभी आप बताइए, इसका ये हाफ वॉल्यूम इमर्स्ड है ना, 7.8 kg को आपने, देखो आयरन तो डूबने वाला चीज है, लेकिन ये हाफ बाय स्प्रिंग इज इमर्स्ड विथ हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम, हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम इनसाइड, हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम इनसाइड मतलब भाई साहब क्या हो जाएगा? इसका अपथ्रस्ट कितना लगेगा? देखो पहले तो हम आयरन का मास निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे वॉल्यूम निकाल लेते हैं। यहाँ पे आपको आयरन का मास दिया हुआ है, आयरन की डेंसिटी दी हुई है, कितनी है भाई साहब? 7.8। रिलेटिव डेंसिटी मतलब कितना हो जाएगा? 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। समझ में आता हूं? और भाई साहब आयरन का मास कितना दिया हुआ है? मास ऑफ आयरन गिवन इज 7.8 kg। तो भाई साहब आपको इसको तोड़ना पड़ेगा। तो लेट्स से यहाँ पे हो गया आपका 7800 ग्राम्स, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम विल बी इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। तो ये हो गया मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। तो मास कितना है यहाँ पे? 7800 अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी कितना है यहाँ पे भाई साहब? आपका मास हो गया 7800 और 7 पॉइंट, यार यही है क्या? अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई, ऐसा ही है, हाँ भाई ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 7.8, है ना, 7800 और ये नहीं डेंसिटी, हाँ ठीक है। तो आपका कितना हो गया? सेंटीमीटर क्यूबिक। तो इसको हटाएंगे तो यहाँ पे तो कितना हो गया भाई साहब? वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक। अभी इसका आधा वॉल्यूम इनसाइड वाटर है, ठीक है। आधा वॉल्यूम मतलब कितना हो जाएगा? 500, ठीक है। तो 500 सेंटीमीटर क्यूबिक हो गया भाई साहब आपका आधा वॉल्यूम, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है भाई साहब? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक इंटू जी कुछ दिया हुआ है यहाँ पे? जी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलो ये मास ही दिखाएगा ना, इंटू जी। हम यहाँ पे अगर करेंगे तो ये भी तो एम जी आता था ना, एम इंटू जी। तो अभी आपका क्या मास दिखाएगा? दिस विल बी 500 इंटू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। तो आपका 500 ग्राम्स, ठीक है। 500 ग्राम्स आपका ऐड हो जाएगा।
तो टोटल वेट कितना आ जाएगा भाई साहब आपका, इसका कितना था भाई साहब, 10 + 500, ठीक है, 10 kg नहीं है यहाँ पे, 10.5 आ जाएगा आपका kg, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम क्लियर, कोनो कंफ्यूजन, क्लियर है, आर वी क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब। चलो फटाफट करना है भाई साहब इसको, फटाफट। हो गया भाई साहब तुम लोग का, किसी का नहीं हुआ है, अच्छा क्यों नहीं, हो गया, डन। ओके देखिए ये एक पीस ऑफ वुड है, ठीक है, अ पीस ऑफ वुड इज फ्लोटिंग इन वाटर, इसके ऊपर भाई साहब एक टुन्नू सा कोई मास है, ठीक है, इसके ऊपर भाई साहब कोई मास है, लेट्स से, ठीक है, ये एक वुड पीस है, इट इज फ्लोटिंग इन वाटर, सपोर्ट्स अ 200 ग्राम मास, तो इसके ऊपर भाई साहब 200 ग्राम का मास है, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ इट्स टॉप फेस, व्हेन द मास इज रिमूव्ड, इस मास को अगर रिमूव कर दिया जाए, द मास राइजेस बाय 2 सेंटीमीटर है, अच्छा यहाँ पे भाई साहब 2 सेंटीमीटर से ऊपर चला जाता है, ओके ठीक है, चलिए भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे लेट्स से भाई साहब आपका ये वाटर लेवल है, लेट्स से ये वाटर लेवल है, इतना भाई साहब है, ठीक है, ये वाटर लेवल है, जैसे ही आपने इसको रिमूव कर दिया ये और थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, क्या ये समझ में आ रहा है, दिस इज द क्वेश्चन, दिस राइजेस बाय 2 सेंटीमीटर, ठीक है, सो वंस यू रिमूव दिस, ठीक है, अगर आपने इसको रिमूव किया, ठीक है, वंस यू रिमूव दिस इट राइजेस अप बाय 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, जब आप इसको रिमूव करते हो, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, सो डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, इस क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ठीक है, तो पहले केस में अपन आते हैं, पहले केस में भाई साहब क्या हो जाएगा, लेट्स से आपका मास, देखो जब बॉडी फ्लोट करती है तो प्रिंसिपल क्या है भाई साहब आपका, व्हाट इज द प्रिंसिपल, हाँ जी बोलिए, क्या कुछ बोलना है, नहीं, weight of the body is equal to the upthrust, क्लियर है, weight of the body is equal to the upthrust, okay, weight of the body भाई साहब कितना है, weight of the wooden piece, ठीक है, प्लस ये 0.2 kg लिख सकते हैं अपन, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, 0.2 kg वेट जितना भी होगा वुड का वेट दे है क्या, नहीं, a cube of wood floating supports a 200 ग्राम, तो कुछ नहीं दिया हुआ है भाई साहब, ठीक है, तो वेट ऑफ द वुड इज नॉट नोन टू अस, राइट, 0.2 kg इसका वेट, ठीक है, इनटू जी है ना भाई साहब, इनटू जी, ये वेट आपने मान लिया है, ठीक है, ये आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, मास ऑफ द वुड प्लस 0.2 इंटू जी, ऐसा भी लिख सकते हो आप, अगर आपने वेट नहीं लिया तो, ठीक है, ओके, दिस विल बी इक्वल टू भाई साहब क्या, अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट, तो लेट्स से अभी वॉल्यूम कितना सबमर्ज्ड है,
लेट्स से एक वॉल्यूम सबमर्ज्ड है V, ठीक है, दिस इज द अमाउंट V, मतलब इतना वॉल्यूम भाई साहब आपका अंदर है ना, इतना वॉल्यूम आपका अंदर है V इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर भाई साहब कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे हम ग्राउंड, अरे यार केजी में लिया, 0.2 केजी लिया ना हमने, तो डेंसिटी को भी केजी पर मीटर क्यूब में लेना पड़ेगा, तो इसका मतलब इसको 1000 लेना पड़ेगा, ठीक है, इनटू जी, ठीक है भाई साहब, केजी में ले रहे हैं अपन, केजी पर मीटर क्यूबिक में, ठीक है। तो आपका V कितना हो गया भाई साहब, V की वैल्यू हो गई मास ऑफ वाटर, सॉरी मास ऑफ वुड प्लस 0.2 अपॉन 1000, ठीक है, 1000, ये वाला पहला V हो गया, ओके। अभी दूसरे में आपका क्या है भाई साहब, सिर्फ मास ऑफ वुड है ना, मास ऑफ वुड इनटू जी, दिस विल बी इक्वल टू द न्यू अपथ्रस्ट, न्यू अपथ्रस्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, लेट्स से आपका एक वॉल्यूम है V डैश इंटू 1000 इंटू जी इज इक्वल टू मास ऑफ वुड इंटू जी, कैंसलम, तो V डैश की वैल्यू, V डैश मतलब ये वाला हो गया, देखो, ठीक है, ये हो गया भाई साहब V डैश की वैल्यू, ठीक है। सो दिस V डैश विल बी इक्वल टू, दिस V डैश विल बी इक्वल टू MW अपॉन 1000, NW अपॉन 1000, ये हो गया आपका V डैश। क्लियर आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। अब बताओ भाई साहब कैसे कैलकुलेट करेंगे, V आपका है और V डैश है, ये V है और ये V डैश है, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब। अगर V है, दिस इज V एंड दिस इज बेसिकली योर V डैश, कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए अभी फटाफट। 2 सेंटीमीटर का हाइट का डिफरेंस है, यहां पे V की वैल्यू बोलो कितनी होगी, V की वैल्यू होगी जो भी एरिया इनटू हाइट, है कि नहीं, V की वैल्यू, V डैश की वैल्यू क्या होगी बोलो, अगेन एरिया इनटू हाइट -2 हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, इज इट अंडरस्टूड, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, जो भी हाइट होगा उसका -2, डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो अभी कर लो भाई साहब, यहां पे हो गया आपका मास ऑफ वाटर प्लस 0.2, ठीक है, अपॉन 1000 अपॉन मास ऑफ वाटर अपॉन 1000 विल बी इक्वल टू V डैश अपॉन V, है ना, तो V डैश अपॉन V मतलब कितना हो जाएगा, V अपॉन V डैश, V अपॉन भाई साहब V डैश, है ना, ठीक है। तो आपका हो गया A इंटू H अपॉन भाई साहब A इंटू H -2, ठीक है, तो ये और ये आपका भाई साहब कैंसिल हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब आपका MW, ये और ये भी भाई साहब कैंसिल, MW प्लस 0.2 अपॉन MW, ठीक है। अभी हमारा भाई साहब तो फंस रहा है, व्हेन द मास इज रिमूव डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, क्या लिखन दिया है भाई साहब, ओ भाई साहब यहाँ पे एक सवाल, अब हमने क्यूबॉइड ले लिया है भाई साहब, ये क्यूब है तो आपका एरिया और हाइट, तो अपन कर सकते हैं ना यहाँ पे एरिया और हाइट, ठीक है, क्यूबॉइड है मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे देखो दिस विल बी व्हाट A इंटू एच, तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका L क्यूब, है ना, L क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे भाई साहब L स्क्वायर इंटू L -2 होगा ये, ठीक है, L स्क्वायर इंटू L -2, सो L क्यूब अपॉन L स्क्वायर इंटू L -2, तब भी नहीं होगा भाई साहब, ये तो तब भी तो नहीं होगा ये L -2,
गोदी में बैठ जाओ उसके, पेपर दे दे उसके साथ ही, वो बेचारा थक गया होगा लिखते लिखते, उसका भी लिख दे, अपना भी लिख ले। पे एक्चुअली यहाँ पे सवाल फंस रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे एल अपन क्या हो रहा है, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका एल क्यू और ये हो गया एल स्क्वायर। सवाल इसलिए फंस रहा है क्योंकि यहाँ पे आपके दो अननोन क्वांटिटीज हैं, ठीक है, एक है एल और एक है आपका एम डब्ल्यू, ठीक है। लेकिन अपन ऐसा कर सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 2 सेंटीमीटर, जैसे आपने इस क्यूब इस वेट को हटाया तो ये 2 सेंटीमीटर नीचे आ गया है ना। तो अगर हमने भाई साहब यहाँ पे 2 सेंटीमीटर वाटर लेवल नीचे आ गया, दिस हैज बेसिकली कम डाउन, और हम बोल सकते हैं ये 2 सेंटीमीटर ऊपर चला गया, तो इसका मतलब अभी तक इस मास के लिए इतना पोर्शन ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ था। क्या ये समझ में आ रहा है? इस 200 ग्राम्स के मास को अगर रिमूव कर देते हैं तो ये वेट या ये जो क्यूब है ये 2 सेंटीमीटर ऊपर चला गया, या हम बोल सकते हैं पानी 2 सेंटीमीटर नीचे आ गया, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसके वजह से कितना वाटर वॉल्यूम डिस्प्लेस था, 2 सेंटीमीटर का वाटर वॉल्यूम डिस्प्लेस था। तो अगर हम सिर्फ इसको लगाएं कि वेट ऑफ द, ठीक है, वेट ऑफ दिस 200 ग्राम, वेट ऑफ 200 ग्राम, ठीक है, this will be equal to, weight of 200 gram will be equal to how much? Upthrust due to volume of water of height कितना भाई साहब, 2 सेंटीमीटर। क्या हम बोल सकते हैं, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर हाइट 2 सेंटीमीटर, तभी तो ये नीचे गया, ठीक है। तो वेट ऑफ 200 ग्राम भाई साहब कितना हो जाएगा, 0.2 इंटू, ये कितना है भाई साहब, 200 ग्राम ना, 0.2 इंटू भाई साहब आपका हो गया जी, है ना, वेट ऑफ द 200 ग्राम। और अपथर्स्ट ड्यू टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी हाउ मच। या तो अगर इसको ग्राम में ही रखते हैं, क्योंकि ग्राम और ग्राम भाई साहब कैंसिल हो जाएगा, सो अगर हम यहाँ पे लगते हैं इसको 200 इंटू जी, ठीक है, दिस विल बी अपथर्स्ट ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ 2 सेंटीमीटर। अभी अगर हमने भाई साहब ये क्यूब है जो हम मिस कर रहे थे, बेसिकली क्यूब है, तो लेट्स से इसका साइड सब सेम रहेगा, लेट्स से दिस इज अ क्यूब ऑफ साइड L, ठीक है। तो आप बताइए ये वाला हो गया L, ये वाला हो गया L, और ये 2 सेंटीमीटर, मतलब अगर आपने एक ऐसा क्यूब लिया, एक ऐसा पोर्शन लिया, ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना होगा, 2 सेंटीमीटर इंटू L इंटू L। सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम, L इंटू L इंटू 2। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। ये हो गया आपका वॉल्यूम। अभी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, डेंसिटी से, VDG, ठीक है। तो आपका हो गया भाई साहब डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर हियर इज हाउ मच पीपल, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। आपने सब कुछ भाई साहब ग्राम और सेंटीमीटर क्यूबिक में रखा है। ये जी हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, जो ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा इसके जी के साथ, ठीक है। ये हो गया V, ये हो गया D, और ये हो गया आपका G, ठीक है। तो GM कैंसलम, ठीक है। तो आपका हो गया भाई साहब L का स्क्वायर 2, तो ये हो गया आपका 100, ठीक है। तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, +-10। ऑब्वियसली साइड आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो साइड आपका पॉजिटिव ही होगा, तो L विल बी इक्वल टू 10। डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल बी L क्यूब, दैट इज 10 का क्यूब, दैट इज हाउ मच, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्या ये समझ में आ रहा है पीपल, हम, ठीक है। हम इसमें इस स्टेप में हम फंस रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपका मास ऑफ वुड भी नोन नहीं है और लेंथ भी नोन नहीं है, ठीक है। लेंथ इज ऑल्सो नॉट नोन टू यू, ठीक है। तो लेकिन अगर हम इस तरफ से जाएं कि भाई साहब इस मास को रिमूव करने के लिए ये भाई साहब नीचे चले आए, तो इसका मतलब इस मास के वजह से कितना अपथ्रस्ट लग रहा था, इस मास के वजह से 2 सेंटीमीटर क्यूबिक का अपथ्रस्ट लग रहा था, उतना ही अपथ्रस्ट जितना इस क्यूब को 2 सेंटीमीटर तक कवर कर सके। और 2 सेंटीमीटर इस क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा, L इंटू 2। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड ड्यू टू दिस मास। समझ में आ रहा है?
तो इतना जो हुआ ये आपका क्या था, वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस ड्यू टू द मास। जैसे आपने इसको हटाया पट से ही नीचे आ गया, मतलब क्यूब ऊपर गया, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस ड्यू टू द 200 ग्राम मास इज इक्वल टू L इंटू एल इंटू 2। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, इसके वेट के बराबर होगा, क्योंकि बॉडी फ्लोटिंग स्टेटस में है तो हमेशा वेट विल बी इक्वल टू अप थ्रस्ट, वेट विल बी इक्वल टू अप थ्रस्ट। तो यहाँ पे वेट ऑफ द 200 ग्राम मास विल बी 200 इंटू जी। हालांकि ये इनवैलिड है क्योंकि जी आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है और 200 ग्राम है, हमको एक्चुअली इसको केजी में कन्वर्ट करना चाहिए, लेकिन हमको मालूम है ये वाला जी और ये वाला जी कैंसिल हो जाएगा, सो वी कैन अफोर्ड टू डू दैट। ठीक है, ओके, यहाँ पे अप थ्रस्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, V दैट इज L इंटू 2 इंटू डी इंटू जी। ठीक है, ये आपका अप थ्रस्ट हो गया, यहाँ जी और जी कैंसिल हो गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमने डेंसिटी ऑफ वाटर को 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक ही लिया है, 1000 kg पर मीटर क्यूबिक नहीं लिया है, क्योंकि इन तमाम चीज़ों को आपने सेंटीमीटर क्यूबिक में ही रखा है। ठीक है, कम से कम इसको तो 2 सेंटीमीटर ही लिया है, तो ऑब्वियसली आपके ये दोनों भी आपने सेंटीमीटर में ही लिए हुए हैं। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, तो आपका ऐसा हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक। क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब। ये एक ये सवाल आपका रिलेटिव डेंसिटी के कॉन्सेप्ट पे है। ठीक है, देखो एक ब्लॉक है विच वेज 15 न्यूटन इन एयर। ठीक है, एक ब्लॉक का भाई साहब वेट दिया हुआ है आपको कितना, 15 न्यूटन इन एयर एंड 12 न्यूटन व्हेन इमर्स्ड इन वाटर। ठीक है, इस एयर में इसका ब्लॉक का वेट है जितना, और जब आप इसको वाटर में इमर्स कर रहे हो तो 12 न्यूटन है। ठीक है, व्हेन इमर्स्ड इन अनदर लिक्विड, तो लिक्विड में, एक लिक्विड में भाई साहब इसका कितना हो रहा है, 13 न्यूटन। कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक, तो ब्लॉक का भाई साहब रिलेटिव डेंसिटी कितना हो जाएगा, ठीक है, वेट ऑफ द ब्लॉक इन एयर अपॉन लॉस ऑफ वेट व्हेन इमर्स्ड इन वाटर। ठीक है, वेट ऑफ द ब्लॉक इन एयर अपॉन लॉस ऑफ वेट व्हेन इमर्स्ड इन वाटर, तो लॉस ऑफ वेट व्हेन इमर्स्ड इन वाटर कितना हो जाएगा बोलो, WA माइनस WW। ठीक है, तो आपका भाई साहब WA कितना हो गया, 15, और WA माइनस WW दैट इज 15 माइनस 12। ठीक है, सो दैट विल बी 15/3 दैट इज 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, इट्स अ कंपैरिजन ऑफ द रेशियो, सो इट विल बी अ यूनिटलेस एज वेल एज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, ओके, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, लॉस ऑफ वेट ऑफ अ सॉलिड when immersed in liquid upon loss of weight of the same solid when immersed in water होता है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, तो आपका लॉस ऑफ वेट when immersed in liquid कितना हो जाएगा बोलो, तो आपका रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड दिस विल बी WL माइनस WA अपॉन WW माइनस WA माइनस WL। ठीक है, और यहाँ पे WA माइनस WW। ठीक है, तो WA माइनस WL अपॉन WA माइनस WW। ठीक है, WA भाई साहब कितना हो गया यहाँ पे 15 माइनस WL दैट इज 13 अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 15 माइनस WW दैट इज 12। तो 15 माइनस 13 कितना हो गया 2, और 15 माइनस 12 कितना हो गया 3। ठीक है, सो आपका रिलेटिव डेंसिटी इज 2/3 दैट इज 0.66 भी आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, क्लियरम पीपलम। ये क्या हो गया वैसे, ट्वाइन है ना। A jeweler claims that he sells ornaments made of pure gold that has relative density of 19.3। ठीक है, तो प्योर गोल्ड की भाई साहब रिलेटिव डेंसिटी कितनी हो गई 19.3, मतलब इसकी डेंसिटी कितनी हो गई 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, है ना भाई साहब। जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वही बेसिकली डेंसिटी होती है, सिर्फ यूनिट असाइन कर देते हैं आप, और यूनिट हमेशा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अ ज्वेलर क्लेम्स दैट ही सेल्स ऑर्नामेंट ऑफ प्योर गोल्ड that has relative density of 19.3, he sells a necklace weighing this much। देखो ये ग्राम फोर्स है, ग्राम फोर्स मतलब क्या होता है, इसको आप करोगे किलोग्राम में कन्वर्ट बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 10⁻³ और फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से।
इट मीन्स दैट, ठीक है। तो इसको अपन ग्राम फोर्स केजी फोर्स केजीएफ भी लिखते हैं या जीएफ भी लिखते हैं, तो आपका ग्राम फोर्स या केजीएफ ये होता है, ठीक है। टू अ पर्सन ही सेल्स अ नेकलेस, तो इसका भाई साहब नेकलेस का वेट कितना है, दिस इज 25.25 ग्राम फोर्स, ठीक है। द क्लेवर कस्टमर वेज द नेकलेस व्हेन इमर्स्ड इन प्योर वाटर, ठीक है, एंड दैट इट वेज कितना है भाई साहब आपका यहाँ पे एयर में और यहाँ पे वाटर में, इसका वेट कितना है 23.075 ग्राम फोर्स। ऑब्वियसली वो ड्रॉप हुआ है वेट, क्यों, क्योंकि इस पे एक अपथ्रस्ट लग रहा है, बिकॉज ऑफ द अपथ्रस्ट देयर इज अ ड्रॉप इन द वेट, ठीक है। ओके, इन वाटर इज द ऑर्नामेंट मेड अप ऑफ प्योर गोल्ड, क्या ये ऑर्नामेंट भाई साहब प्योर गोल्ड का बना हुआ है? हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड इट आउट पीपल? बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी से बोलिए भाई साहब। तो अपन क्या निकालेंगे भाई साहब, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला निकाल लो। अभी आपने देखो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉलिड इन एयर अपॉन लॉस ऑफ वेट व्हेन इमर्स्ड इन वाटर, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब इसमें आते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, वेट ऑफ द सॉलिड इन एयर कितना है भाई साहब आपका, वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ गोल्ड हम बोल सकते हैं इन एयर, वेट ऑफ गोल्ड इन एयर, ठीक है, अपॉन लॉस of weight when immersed in water, when immersed in water, loss of weight when immersed in water, weight of gold in air कितना हो जाएगा भाई साहब 25.25 ग्राम फोर्स, ठीक है। लॉस ऑफ वेट when immersed in water कितना भाई साहब लॉस हो जाएगा 25.25 माइनस 23.075 ग्राम फोर्स। क्लियरम क्लियरम क्लियरम, कैंसलम कैंसलम, ठीक है। तुम कुछ और तो नहीं लिख रहे हो तेजस? नहीं, ओके, ठीक है। तो 25.25 और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, करो ना करो भाई साहब जल्दी से फटाफट, 25.25 माइनस 2.175 और लगे हाथ भाई साहब डिवाइड भी कर लो, कितना हो जाएगा 11.60, ठीक है। ये हो गया आपका रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो आपका डेंसिटी कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ दिस गोल्ड इज हाउ मच हम पीपल, हम 11.60 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। नाउ इज द ऑर्नामेंट मेड अप ऑफ प्योर गोल्ड, क्योंकि आपका डेंसिटी ऑफ प्योर गोल्ड इज हाउ मच 19.3 एंड डेंसिटी ऑफ दिस इज 11.60, यहाँ पे आपको जो डेंसिटी मिल रहा है, सो डेफिनेटली नॉट, ठीक है। तो कस्टमर भी उल्लू बना रहा है और दुकानदार भी, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रही है? कस्टमर उल्लू बना रहा है उसको कि अरे भाई साहब इतना ही वेट है इसका, इतना ही वेट है, हाँ क्या मैम मैप उसी में तो है तो इसी में कर, हाँ। अरे क्या चाचू माँ, इतना बड़ा मैप दिया हुआ है भाई साहब, तो अलग से मैप मांग रहा है। ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ठीक है। तो कस्टमर ने इसको कम वेट दिखाया, भाई साहब रेट ये लगाओ तुम्हारे वेट के हिसाब से इतना वेट है, और ये भाई साहब एक्चुअली में जो बेच रहा है वो लेस डेंसिटी ऑफ गोल्ड बेच रहा है, ठीक है। कस्टमर ने ये ध्यान नहीं दिया कि भाई साहब कहाँ 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक होता है डेंसिटी ऑफ प्योर गोल्ड, और यहाँ पे एक्चुअली में जो गोल्ड उसको मिल रहा है उसकी डेंसिटी सिर्फ 11.60 है। मतलब वो पहले ही मार खा रहा है, ये खुशी खुशी बेच देगा भाई साहब। हाँ तुमको मतलब 25 का 23 में करना है ना, 23 में कर लो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, उधर मैं मुनाफा कमा ही लूंगा। क्या ये समझ में आ रहा है? 19 का 11 है भाई साहब, सोचिए। तो विल द सेलर बी स्टिल एट प्रॉफिट इफ ही सेल्स एट द कस्टमर्स वेट, विल द सेलर बी स्टिल एट प्रॉफिट? यस ही विल बी, ठीक है। समझ में आ रहा है ये भाई साहब? बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके बच्चा पार्टी, हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे विस्कोसिटी के बारे में, ठीक है। विस्कोसिटी में ये इकलौता एक चैप्टर होगा या इकलौता एक टॉपिक होगा आपके फिजिक्स में जिसमें डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें जो फॉर्मूला आप पढ़ेंगे वो आपको रटना पड़ेगा, वैसे भी आप रटते ही हैं, ठीक है, मतलब ठीक है। तो ये एक इकलौता है जिसमें आपका डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। आप अगर पूछेंगे कि भाई साहब कहाँ से आया ये, तो ना ही स्टेट बोर्ड में और ना ही सीबीएसई में इसका डेरिवेशन एप्लीकेबल है, ठीक है। विस्कोसिटी अगर आप मोटे मोटे तौर पे समझे तो ये मतलब जैसे जैसे आप यहाँ पे चल रहे हैं या मूव कर रहे हैं, तो आपका एक लेयर है और ये ग्राउंड का लेयर है,
ठीक है, यू आर मूविंग ऑन इट, ठीक है। लेकिन लिक्विड में लेयर और लेयर के बीच में, तो लिक्विड में एक लेयर ये है, दूसरा लेयर ये है, तीसरा लेयर ये, ऐसा है, और इन लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन होता है, ठीक है, फ्लूइड मूवमेंट होता है, इन लेयर्स के बीच में मूवमेंट होता है, और जहां भी मूवमेंट होगा वहां पे फ्रिक्शन होगा। मोटे मोटे तौर पे हम ये बोल सकते हैं कि विस्कोसिटी इज नथिंग बट लिक्विड फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन, टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो ये लेयर और लेयर के बीच में होता है। तो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज विस्कोसिटी एंड व्हाट इज द फॉर्मूला दैट इज एप्लीकेबल फॉर इट। बिफोर दैट वी विल फिनिश ऑफ विद 2 प्रॉब्लम्स जिस पे हमने भाई साहब चर्चा की हुई है। ओके, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम में, अ टैंक कंटेन्स वाटर, इसमें भाई साहब वाटर है एंड मरकरी। तो मरकरी वाजिब ज़ौर से भाई साहब आपका ज़्यादा हैवी है, ठीक है। अ टैंक कंटेन्स वाटर एंड मरकरी एज शोन, एन आयरन क्यूब ऑफ एज 6 सेंटीमीटर इज इन इक्विलिब्रियम एज शोन। तो ये भाई साहब इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, एक आयरन क्यूब है और ये बराबर कहाँ पे बैठा हुआ है, मरकरी और वाटर के बीच में, और ये इक्विलिब्रियम में है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ठीक है, एज शोन, और इज इन इक्विलिब्रियम एज शोन। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द क्यूब, what is the fraction of the cube inside the mercury given density of iron is this much and density of mercury is this much, ठीक है। तो अपन ने क्या मान लिया है, let x be the depth of the cube in mercury। तो आपका समझ लो मरकरी में इसका डेप्थ कितना है भाई साहब, x, ठीक है, एंड द डेप्थ ऑफ द क्यूब इन वाटर। तो आप देखो यहाँ पे आपका कितना है, 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर मतलब कितना हो गया भाई साहब आपका 0.06 मीटर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हर एक साइड इस क्यूब का, क्यूब है भाई साहब, तो हर एक साइड कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 0.06 मीटर। तो अगर x मीटर मरकरी के नीचे है तो मरकरी के ऊपर वाटर में कितना हिस्सा हो जाएगा आपका 0.06 माइनस x। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? ये वाला जो हिस्सा जो वाटर में होगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों भी क्या होंगे आपके 0.06 मीटर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि द डेप्थ ऑफ द क्यूब इन वाटर विल बी 0.06 माइनस x, ठीक है। फ्रॉम आर्किमिडीज प्रिंसिपल बियॉन्ड फोर्स ऑन द क्यूब कितना हो जाएगा भाई साहब आपका V1, दैट विल बी इक्वल टू, कैसे ही आया, VDG है ना भाई साहब। आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है, आपका जो अपथ्रस्ट है, ठीक है, अपथ्रस्ट कितना होता है, अपथ्रस्ट होता है वॉल्यूम इनटू रो इनटू जी, ठीक है। आर्किमिडीज बियॉन्ड फोर्स ड्यू टू मरकरी, तब हम मरकरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन मरकरी, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन मरकरी कितना हो जाएगा, ये क्यूब का भी बन जाएगा क्यूबॉइड। आप एक क्यूब को बीच में से काट रहे हो भाई साहब, है ना, बीच में से काट रहे हो, तो इतना हिस्सा जो है उसका, ठीक है, ये हो गया इसका हाइट, हाइट कितना हो गया इसका 0.x हो गया ना, x हाइट इसके अंदर है, और एरिया कितना हो जाएगा, ये 0.6 और ये 0.6। क्या ये समझ में आ रहा है? तो आपका वॉल्यूम मतलब क्या होता है, एरिया इंटू हाइट लिख सकते हैं भाई साहब, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट किसी क्यूबॉइड का एरिया वॉल्यूम होता है। तो मतलब एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब एरिया इंटू हाइट, समझम, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा, इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? अब कर लो बात इसकी, ये कितना हो जाएगा 0.06 का स्क्वायर, समझम समझम समझम, 0.06 का स्क्वायर, और h मतलब कितना हो गया x, मरकरी का भाई साहब डेंसिटी आपको दिया हुआ है, ठीक है, 0.06 का स्क्वायर इंटू x, मरकरी का डेंसिटी दिया हुआ है 13.6 इंटू 13.6। देखो इसीलिए यूनिट्स बहुत जरूरी हैं, ठीक है। आपने इसको सेंटीमीटर से मीटर में इसलिए कन्वर्ट किया है क्योंकि आपको यहाँ पे मीटर क्यूबिक में दिया हुआ है, सो दैट्स द रीजन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव द प्रॉपर कन्वर्ट। जहाँ पे जी और जी कट रहा है ना वहाँ पे छोड़ दो, ठीक है, लेकिन जहाँ पे नहीं कट रहा है वहाँ पे आपको भाई साहब ये सारी चीजें केयरफुल रहनी पड़ेंगी। 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8, ये हो गया भाई साहब अपथ्रस्ट ड्यू टू मरकरी, ठीक है। सिमिलरली बियॉन्ड फोर्स इन द क्यूब ड्यू टू वाटर, वाटर क्या है भाई साहब आपका 0.06 का स्क्वायर, ठीक है, 0.06 माइनस x, क्लियर है, मतलब ये हाइट हो गया ना इसका 0.06 माइनस x इंटू 10⁻³ आपका भाई साहब वाटर का डेंसिटी है ये भाई साहब, वाटर में कितना हो जाएगा अपथ्रस्ट ड्यू टू वाटर, ये हो गया अपथ्रस्ट ड्यू टू मरकरी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ये हो गया आपका अपथ्रस्ट ड्यू टू मरकरी या बियॉन्ड फोर्स ड्यू टू मरकरी हो गया ये, ठीक है। और वाटर के लिए क्या हो जाएगा बोलो, वाटर के लिए बहुत सीधा सरल तरीके से अगर हम देखेंगे, वाटर के लिए भाई साहब कितना हो जाएगा, वाटर के लिए हो जाएगा दी
वॉल्यूम इमर्स्ड इन वाटर विच इज हाउ मच, VDG अगेन। तो वॉल्यूम मतलब क्या हो जाएगा 0.06 का स्क्वायर, ये तो होना ही होना है, ठीक है। अभी हाइट क्या हो जाएगा आपका 0.06 माइनस एक्स इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 10⁻³ 1000 kg पर मीटर क्यूबिक होता है, ओके, और इंटू 9.8, ठीक है। आर वी क्लियर? क्लियर, ओके। ये हो गया बियॉन्ड फोर्स ड्यू टू मरकरी ऑन द क्यूब एंड दिस इज बियॉन्ड फोर्स ड्यू टू वाटर ऑन द क्यूब। When the cube is in equilibrium, तो ये दोनों का एक अपवर्ड फोर्स है और क्यूब का डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा भाई साहब, उसका मास, उसका वेट है ना, ठीक है। When the cube is in equilibrium, that is B1 plus B2 should be equal to the weight of the iron cube, ठीक है। और weight of the iron cube क्या हो जाएगा, इसकी वॉल्यूम, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई साहब, आपने एक तरफ ये लिख दिया, इसमें से G को आपने कॉमन निकाल दिया, G को ना भी लिखो तो भी चलेगा, इन दोनों को ऐड करोगे और वेट ऑफ द आयरन क्यूब कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द आयरन क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ आयरन, ठीक है, इंटू जी, ये हो गया आपका मास इंटू जी, ठीक है। तो इसीलिए जी देखो अगर आप ना भी लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि दोनों तरफ जी कटने वाला है, आप यहाँ पे जी को कॉमन निकालोगे ही, तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी एरिया इंटू हाइट। तो एरिया हो गया भाई साहब आपका 0.06 का क्यूब, या आप सीधा सीधा वॉल्यूम ले लो पूरा पूरा, ठीक है। आपका 0.06 आपका हाइट भी है ना, क्यूब है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 0.06 का क्यूब, ठीक है, ओके। और डेंसिटी ऑफ आयरन, डेंसिटी ऑफ आयरन दैट इज 0.06 का क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ आयरन दैट इज 7.7 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8, ठीक है। तो ये आपका 9.8 और ये वाला 9.8 भाई साहब कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 13.6 प्लस 0.06 माइनस एक्स, तो 13.6 माइनस एक्स कितना हो जाएगा आपका 12.6x हो जाएगा, समझ में आ रही है। देखो यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जाएगा, देखो तुड़ुम तुड़ुम, ठीक है। तो कितना बचा यहाँ पे देखो, ये 10⁻³ और ये 10⁻³ भी कैंसिल हो गया, तो आपका यहाँ पे बचा कितना 13.6x प्लस 0.06 माइनस x इज इक्वल टू 0.06 इंटू 7.7। इसको जैसे तुम इधर लोगे तो 0.06 को कॉमन निकाल सकते हो कि नहीं, 0.06 को कॉमन निकाला और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 7.7 माइनस 1, ऐसा लिख सकते हो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.06 इंटू 6.7, ठीक है, 6.7, और इधर कितना हो जाएगा बोलो, सो दिस विल बी 12.6x, क्लियर है, ठीक है, 12.6x। तो आपका भाई साहब यहाँ पे इतना किससे आ गया यार, ये इसको मल्टीप्लाई करो ना, 36 तक कुछ तो आएगा, 6 6 36, चलो यहाँ पे 4 ले लिया है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, x की वैल्यू यहाँ पे ले लिया है इन लोगों ने 0.4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, हाँ 6.7 इंटू 6, हाँ तो 402, तो मतलब 0.40 ले लिया है, ठीक है, अपॉन 12.6, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका होगा भाई साहब 0.032 मीटर, ठीक है। समझम। तो आपका भाई साहब यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.032 मीटर। मीटर में ही आंसर आना है, सेंटीमीटर में भले आपको दिया हुआ है लेकिन आपने सारे कैलकुलेशंस मीटर में किए हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो फ्रैक्शन ऑफ द क्यूब इनसाइड द मरकरी कितना हो जाएगा, अभी तुम बोलोगे वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम में डिफरेंस कहां पे आ रहा है, देखो यहाँ पे सीधा सीधा इसको ले लिया है, क्यों इसको ले लिया है, क्योंकि व्हाट इज द वॉल्यूम इनसाइड द क्यूब, सो फ्रैक्शन ऑफ द क्यूब इनसाइड मरकरी, मरकरी के अंदर उसका कितना वॉल्यूम है, बोलो 0.06 इंटू 0.06, ये तो रहेगा ही, इंटू हाइट कितना है अंडर मरकरी 0.032, और इसका भाई साहब पूरे का अगर हम देखेंगे तो कितना होगा 0.06 इंटू 0.06 इंटू 0.06, तो ये भाई साहब हो गया कैंसिल, तो 0.022, तो आपका हो गया कितना 0.533। आर वी क्लियर? ओके। यहां पे दिया हुआ है देखो, अ बॉडी ऑफ डेंसिटी रो फ्लोट्स विद अ वॉल्यूम ऑफ V1, ठीक है, विद अ वॉल्यूम V1 ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम V इमर्स्ड, ठीक है, V1 immersed है, its total volume V immersed in one liquid of density ρ1 and with the remainder volume V2 immersed in another liquid of density ρ2। सेम सवाल है, ठीक है, पिछले वाले की तरह ही, सिर्फ यहाँ पे आपको V1 V2 ρ1 ρ2 दिया हुआ है, वहाँ पे आपको वैल्यूज दिए हुए थे, ठीक है।
सो बॉडी ऑफ डेंसिटी, आपका बॉडी का डेंसिटी कितना दिया हुआ है, आपका बॉडी का डेंसिटी दिया हुआ है रो, और समझो भाई साहब यहां पे, ठीक है, तो आपका लिक्विड है, यहां पे देखो लिक्विड ऐसा है, ये लिक्विड है, तो ऑब्वियसली जो डेंसर लिक्विड होगा वो नीचे जाएगा रो 1, और ये वाला भाई साहब है आपका रो 2, लेट्स से, ठीक है, सॉरी, ये है भाई साहब आपका रो 2, ठीक है, ये हो गया डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो 1 और ये रो 2, ठीक है। सो अ बॉडी ऑफ डेंसिटी रो, इसकी डेंसिटी कितनी है भाई साहब रो, फ्लोट्स विद अ वॉल्यूम V1 ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम इमर्स्ड इन वन लिक्विड, तो V1 भाई साहब इतना वॉल्यूम भाई साहब इमर्स्ड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो 1 एंड विद द रिमाइंडर वॉल्यूम V2 इमर्स्ड इन अनदर लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो 2। यहाँ पे रो 1 क्या है भाई साहब, रो 2 से ज्यादा है, ठीक है, तो रो 1 रो 2 से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली नीचे की तरफ क्या होगा, रो 1 होगा, ऊपर की तरफ होगा रो 2। फाइंड द रिलेटिव वॉल्यूम्स इमर्स्ड इन द टू लिक्विड्स, तो आपको भाई साहब यहाँ पे रिलेटिव वॉल्यूम्स को बीच में आपको एक रिलेशनशिप निकालना है, ठीक है, तो ये V1 हो गया और ये V2 हो गया भाई साहब, ठीक है, ओके। वेट ऑफ द बॉडी कितना हो जाएगा भाई साहब, ऑब्वियसली अगर समझ लो पूरा टोटल वॉल्यूम, देखो आप V को ऐसे लिख सकते हो V1 प्लस V2, तो वेट ऑफ द बॉडी कितना हो जाएगा V रो G, V रो G, ठीक है, ओके। वेट ऑफ द एंटायर बॉडी विल बी V रो G। वेट ऑफ द फर्स्ट लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो कितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा इसका, व्हाट इज द वेट ऑफ द फर्स्ट लिक्विड डिस्प्लेस, इसका इतना वॉल्यूम क्या है V1 रो 1 G, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, और यही इस पे अपथ्रस्ट लगेगा, है ना, जितना वेट इसका डिस्प्लेस होगा इतना अपथ्रस्ट लगेगा इसको, ठीक है। वेट ऑफ द सेकंड लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये भाई साहब कितना होगा V2 रो 2 G, दिस विल बी द सेकंड लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। व्हेन द बॉडी फ्लोट्स, वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ द टू लिक्विड डिस्प्लेस, या अपथ्रस्ट भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, अगर आपको बियॉन्ड फोर्स बोलना है यहाँ पे तो वो भी बोल सकते हैं, क्योंकि अपथ्रस्ट ही आपका वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा, ठीक है। तो V रो G दैट इज बेसिकली व्हाट, वेट ऑफ द बॉडी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू G, तुम यहाँ पे हो ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका वेट ऑफ द बॉडी, और ये क्या हो जाएगा भाई साहब V1 रो 1 G, V2 रो 2 G, तो G भाई साहब कैंसिल हो गया, V रो इज इक्वल टू V1 रो 1 प्लस V2 रो 2, तो आपका यहाँ पे हमको मालूम है, देखो V क्या है, V1 प्लस V2 तो है, वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम क्या है V1 प्लस V2 है, ठीक है। अगर आपने इस वाले इक्वेशन पे मल्टीप्लाई किया किससे, रो 1 से, तो भाई साहब कितना हो जाएगा, V रो 1 विल बी इक्वल टू V1 रो 1 प्लस V2 रो 1, क्लियर है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को भाई साहब ऊपर वाले इक्वेशन से कर दो सब्ट्रैक्ट, ठीक है, इस वाले इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो V रो माइनस रो 1 हो गया, V हमने कॉमन निकाला, देखो रो माइनस रो 1, इधर कितना हो जाएगा बोलो, V1 रो 1 है, और यहाँ पे क्या है V1 रो 1 है, कैंसिल, यहाँ पे कितना बचा V2 रो 2 और यहाँ पे V2 रो 1, तो V2 को कॉमन निकाल सकते हैं अपन, क्या बचेगा रो 2 माइनस रो 1। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम क्या ये एब्सोल्युटली समझ में आ रहा है, तो V रो 1 माइनस P, रो 1 माइनस P, आपने बस अब मतलब क्या कर दिया, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये आगे हो जाएगा, ये पीछे, ये आगे हो जाएगा, ये पीछे, सिंपल, ठीक है। रो 1 माइनस रो 2, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो V2 की वैल्यू कितनी हो गई, रो 1 माइनस रो अपॉन रो 1 माइनस, ठीक है, V2 की वैल्यू, अगर इसको इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया अपन ने, ठीक है, तो कितना हो गया बोलो, रो 1 माइनस रो 1 माइनस रो 2 V, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ V2 इनटू इस वाले इक्वेशन में देखो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 की वैल्यू डाल रहे हैं यहाँ पे, रो 1 माइनस रो 1 माइनस रो 2, अभी इसको इधर लेकर जाएंगे, तो अगर हमने V को इधर लिया, ठीक है, तो देखो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 की वैल्यू हो जाएगी V माइनस रो 1 माइनस रो 1 माइनस रो 2, और ये हो गया भाई साहब आपका V, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो, यहाँ पे अपन करेंगे रो 1 माइनस रो 2 और ये हो गया आपका B, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, रो 1 माइनस रो 2 माइनस रो 1, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये हो गया रो, ठीक है, क्लियर है पीपल हम, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये कैंसिल, ठीक है, तो आपका वैल्यू कितना हो गया, रो माइनस रो 2, ठीक है, रो 1 माइनस रो 2 इंटू V, ठीक है, क्लियर है। तो V1 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, रो माइनस रो 2, रो 1 माइनस रो 2, और ये हो गया आपका V, क्लियर हम पीपल हम, ठीक है। फाइंड द रिलेटिव वॉल्यूम्स इमर्स्ड इन द टी लिक्विड्स, तो आपको भाई साहब ये रिलेटिव वॉल्यूम्स निकालना था, ये वाला का वॉल्यूम कितना आ गया भाई साहब, V1 का वॉल्यूम इतना आ गया और V2 का वॉल्यूम इतना आ गया, ठीक है। तो V2 इज द
portion of V which is immersed in V2 is the portion of V which is immersed in the liquid. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, तो आपको यहां पे ये निकालना था कि V1 V का कितना पोर्शन है और V2 इस V का कितना पोर्शन है. दैट इज व्हाट यू हैव टू फाइंड द रिलेटिव वॉल्यूम इज. क्लियर? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया. एक और सवाल कर लेते हैं भाई साहब. अ सैंपल ऑफ मिल्क डाइल्यूटेड विद वाटर हैज अ डेंसिटी ऑफ इट मच 1000, जो मतलब पानी में मिलावट है, ठीक है, या ठीक है. सो इफ प्योर मिल्क हैज अ डेंसिटी ऑफ दिस मच, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम इन मिल्क. तो आपका भाई साहब यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी का क्वेश्चन है, ठीक है. सो अपन क्या करेंगे, लेट द वॉल्यूम ऑफ द डाइल्यूटेड सैंपल ऑफ मिल्क इज V, ठीक है. वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सैंपल कितना है, लेट्स से स्मॉल लेटर V, ठीक है. तो वॉल्यूम ऑफ प्योर मिल्क कितना हो जाएगा, जो आपका डाइल्यूटेड सैंपल कैपिटल V माइनस V हो जाएगा, ठीक है. ओके, डेंसिटी ऑफ डाइल्यूटेड मिल्क कितना दिया हुआ है आपको, 1032 kg पर मीटर क्यूबिक, और डेंसिटी ऑफ प्योर मिल्क आपको कितना दिया हुआ है, 1080 kg पर मीटर क्यूबिक, ठीक है. ये दोनों चीज आपको दी हुई है. डेंसिटी ऑफ वाटर ऑब्वियसली वी नो इट्स 1000 kg. तो डेंसिटी ऑफ डाइल्यूटेड मिल्क क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्योर मिल्क प्लस मास ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड मिल्क. देखो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है. तो अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे डाइल्यूटेड मिल्क की, डाइल्यूटेड मिल्क मतलब जिसमें पानी मिला हुआ है, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्योर मिल्क अपॉन मास ऑफ वाटर, जितना आपने इसमें वाटर ऐड किया है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड मिल्क, है ना. ओके, मास ऑफ प्योर मिल्क कितना हो जाएगा, देखो मास ऑफ प्योर मिल्क ये वाला कितना हो जाएगा, दिस विल बी वॉल्यूम ऑफ प्योर मिल्क, है ना, वॉल्यूम ऑफ प्योर मिल्क इनटू इट्स डेंसिटी, है कि नहीं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. और मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू इट्स डेंसिटी. समझ में आ रहा है भाई साहब, क्लियर है. ओके, अपॉन वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड मिल्क, तो वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड मिल्क आपने V पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है. ओके, कितना हो गया भाई साहब आपका 1032 V, ये हो गया आपका 1080 V माइनस 1080 V, और ये हो गया 1000 V, ठीक है. तो आपका अगर यहाँ पे करना है, देखो ये हो गया 1032, और इसको अगर अपन इधर लेकर आते हैं, ठीक है, लेट्स से इस 1080 को इधर रखते हैं, 1080 V माइनस 1032 V, और इधर कितना हो जाएगा बोलो. सो दिस विल बी 1000, यहां पे कितना आएगा, माइनस 80 V आएगा ना इनका, इसको इधर लेकर आओगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 80 स्मॉल v, ठीक है. तो आपका भाई साहब यहाँ पे अगर V बाई कैपिटल V करना है, तो यहाँ पे कितना हो गया, देखो 80 V इज इक्वल टू V 48 V. तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल लेटर V बाई कैपिटल लेटर V इज इक्वल टू 48 बाई 80, दैट विल बी हाउ मच, 0.6, ठीक है. परसेंटेज ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम इन मिल्क कितना हो जाएगा, 0.6 इंटू 100, दैट इज 60%, ठीक है. क्लियर है. तो आपका भाई साहब परसेंटेज कितना हो जाएगा, 0.6 इंटू 100% कर दो तो आपका 60%. क्लियर है, 60%. ओके, सो विल स्टार्ट विद दिस न्यू कॉन्सेप्ट पीपल, विस्कोसिटी, ठीक है. जैसे मैंने आपको बताया फ्लूइड में कैसा फ्रिक्शन होता है, लेयर बाय लेयर फ्रिक्शन होता है, क्योंकि फ्लूइड में एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर भाई साहब मूव कर रहा है, और इसके वजह से जहां भी मूवमेंट होगा दुनिया में, किसी भी कोने में जहां पे भी मूवमेंट होगा भाई साहब, वहां पे फ्रिक्शन होगा ही होगा, ठीक है. फॉर एग्जांपल अर्थ के नीचे जब अर्थक्वेक जनरेट होता है, तो वहां पे टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है, भारी फ्रिक्शन जनरेट होता है, और इसी के चलते बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है, इतनी ज्यादा एनर्जी कि भाई साहब बिल्डिंग गिरा देगी, ठीक है. ओके, सो विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ विच एन इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन द फ्लूइड इज इन मोशन. तो अगर आपने भाई साहब फ्लूइड जब तक स्टैटिक है तब तक विस्कोसिटी नहीं होगी, जैसे ही फ्लूइड को आप इधर या इधर मूव करोगे तो भाई साहब लेयर्स मूव होंगे, और लेयर्स अलग अलग स्पीड से मूव होंगे. समझ में आ रही है, ठीक है. लेयर्स अलग अलग स्पीड से मूव होंगे, ये वाला लेयर जिस स्पीड से मूव होगा उसका वाला लेयर ऐसा होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है. ओके, सो व्हाट इज विस्कोसिटी पीपल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच एन इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन comes into play when a fluid is in motion and which opposes the relative motion between its different layers. तो ये जो है internal friction create करता है, movement हो रहा है between the internal layers and this will generate an internal friction. Are we clear? And this is basically nothing but viscosity. इसी को अपन क्या बोलते हैं, viscosity, ठीक है. Okay, this backward dragging force called viscous drag or viscous force, इसी को अपन क्या बोलते हैं, viscous force. आप जब स्विमिंग पूल में डुबकी लगा रहे हैं जोर से,
बहुत ऊपर से नीचे आप कूद रहे हैं, ठीक है, व्हेन यू हैव सीन डाइवर्स बेसिकली, तो हो क्या रहा है, पूरे लिक्विड में अफरा तफरी मच रही है कि नहीं, जैसे आप डाइव करें पूरा लिक्विड छलक रहा है भाई साहब, तो मूवमेंट हो रहा है, और इस मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है, विस्कस ड्रैग प्रोड्यूस हो रहा है, जो आपके स्पीड को धीरे कर देता है। दैट्स हाउ यू माइट टच द बॉटम और माइट नॉट, ये आपके स्पीड को धीरे कर देगा। You might be knowing swimming or you might not be knowing swimming. That doesn't matter. The moment you land up in water, your speed is going to decrease significantly because there is going to be a viscous drag. ये viscous drag होगा भाई साहब, जो आपके स्पीड को एकदम पट्ट से कम कर देगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी लेयर्स में फ्रिक्शन है, और जैसे आप कूदते हो और ज्यादा मोशन होता है और ज्यादा फ्रिक्शन जनरेट होता है। आप सोचिए इस चीज को कि इतने सारे अर्थ के आजू बाजू सेलेस्टियल बॉडीज हैं, आपको क्या लगता है कि कोई भी सेलेस्टियल बॉडी हमारे ऊपर नहीं होता होगा? इतने सारे मेटियोर्स हैं, रॉक्स हैं, ठीक है, कभी भी ऐसा हो रहा है, समझ लीजिए अर्थ है वैसा घूम रहा है, ये मेटियोर है वैसा कहीं, जैसे ये ग्रेविटेशनल फील्ड्स में आ जाता है अर्थ के, सट से खींचेगा ये, ठीक है। अभी ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ऊपर तक है, अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड बहुत ऊपर तक है, जैसे ये अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड में आता है तो ये अर्थ की तरफ खींचेगा। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जिसको आप बचपन से पढ़ते आए हो कि हमको सिर्फ ऑक्सीजन देता है और तो कुछ नहीं, लेकिन ये एटमॉस्फेयर की वजह से आप बचे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मेटियोर आ रहा है ये बहुत जोर से आएगा अर्थ की तरफ, और जब ये आएगा, एयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, एक फ्लूइड है, तो क्या उस फ्लूइड में विस्कस ड्रैग क्रिएट होगा भाई साहब। जैसे आप स्विमिंग पूल में लैंड करते हो, जिस तरह से आपके ऊपर विस्कस ड्रैग क्रिएट होता है, वैसा ही विस्कस ड्रैग यहाँ पे क्रिएट होगा, और इस विस्कस ड्रैग में भाई साहब इतनी एनर्जी क्रिएट होगी, इतनी एनर्जी कि ये जल जाएगा भाई साहब, ये फूट जाएगा, इट विल ब्लास्ट। ऐसे कितने ही करोड़ों मेटियोर पार्टिकल्स ऊपर ही ऊपर ब्लास्ट होके हमारे ऊपर सिर्फ डस्ट गिरता है, जिसका आपको आभास नहीं है, ठीक है। वरना क्या होता था, अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता था, द अर्थ वुड हैव बीन अ क्रेटर लैंड, मतलब इतने ज्यादा आपके क्रेटर्स होते थे भाई साहब। एक क्रेटर हमारे ऊपर गिरा होगा जिसकी वजह से पूरी डायनासोर की स्पीशीज खत्म हो गई, ठीक है, ऐसा हम मानते हैं। मे बी दैट वुड हैव हैपेंड, क्योंकि अर्थ में कुछ ऐसे बड़े बड़े बिग डेप्थ्स वाले चीजें मिली हैं जिनको हम क्रेटर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, तो जरूर कोई क्रेटर यहाँ पे गिरा होगा। बिग बैंग थ्योरी यही बोलती है कि वैसा अर्थ ऐसे जा रहा था, तभी डायनासोर्स वगैरह भी थे, कोई क्रेटर आकर यहाँ पे गिरा था, कोई मेटियोर आकर गिरा था, बहुत बड़ा मेटियोर साइज था, जिसकी वजह से इस कोलिजन से पूरे अर्थ का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया कि सारे जितने भी लार्ज स्पीशीज थे सब खत्म हो गए, इंक्लूडिंग डायनासोर्स, ठीक है, इंक्लूडिंग डायनासोर्स। ऐसा ही थियरी है, ठीक है, हालांकि रिकॉर्डिंग नहीं है उस चीज की, लेकिन ऐसा ही थियरी है। तो आप सोचिए कि आज की तारीख में भी भाई साहब मेटियोर्स आ रहे हैं, लेकिन ये मेटियोर्स लुप्त हो जाते हैं, आप तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि यू हैव अ ह्यूज लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर अबव यू। ये जो एटमॉस्फेयर का लेयर है, ये भाई साहब उसमें विस्फोट ला देता है, यू आर नॉट एबल टू, ठीक है। तो मैं विस्कस ड्रैग की आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं, ठीक है। द बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स कॉल्ड विस्कस ड्रैग और विस्कस फोर्स एक्ट्स टेंजेंशियली टू द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड इन मोशन एंड टेंड्स टू डिस्ट्रॉय इट्स मोशन। तो आपका भाई साहब ये लेयर्स हैं, इस लेयर्स में ऐसा विस्कस ड्रैग क्रिएट होता है, दिस बेसिकली क्रिएट्स अ विस्कस ड्रैग, ठीक है। कॉजेज ऑफ विस्कोसिटी, कंसिडर अ लिक्विड मूविंग स्लोली एंड स्टेडली, क्या करें, ठीक है, मूविंग स्लोली एंड स्टेडली ओवर अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक लिक्विड है भाई साहब, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस उसके ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है। ईच लेयर मूव्स पैरेलल टू द फिक्स्ड सरफेस, तो एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। लेयर इन कॉन्टैक्ट विद द फिक्स्ड सरफेस इज एट रेस्ट एंड द वेलोसिटी ऑफ एवरी अदर लेयर इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली अपवर्ड्स। तो आपका जितना भी है, ये सबसे बॉटम में ना तुमको नींद आ रही है बहुत जोर से, जितना बॉटम में आप होंगे उतना भाई साहब आपका लिक्विड का स्पीड कम होगा, ठीक है। बॉटम लेयर्स विल हैव द लीस्ट स्पीड, ये वाला लेयर का स्पीड सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। दिस लेयर वुड हैव द हाईएस्ट स्पीड, ठीक है। सो इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली अपवर्ड्स, ठीक है। कंसिडर एनी टू एडजेसेंट लेयर्स ए एंड बी, ठीक है। द अपर फास्ट मूविंग लेयर ए टेंड्स टू एक्सेलरेट द लोअर स्लो मूविंग लेयर बी, while the slow moving layer B tends to retard the fast moving layer A। अभी आप देखो, ये वाले लेयर को भाई साहब ये वाला लेयर रोकने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, ऊपर वाले लेयर को अगेन ये वाला रोकने की कोशिश करेगा। सो देयर इज अ टेंजेंशियल फोर्स व्हिच इज एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ द लेयर्स बिटवीन देम, ठीक है। तो स्पीड ऑफ द लेयर्स भाई साहब कम हो रहे हैं, ठीक है। कंसीडर एनी टू एडजेसेंट लेयर्स ए एंड बी, तो कोई भी दो एडजेसेंट लेयर्स ले लो ए एंड बी, ठीक है। The upper fast moving layer A tends to accelerate the lower slow moving layer B,
while the slow moving layer B tends to retard the fast moving layer A. As a result, a backward dragging tangential force called viscous drag, ठीक है, comes into play which tends to destroy the relative motion. और ये viscous drag आ जाता है, ये relative motion को भाई साहब destroy करने की कोशिश करता है. To maintain the motion, an external force has to be applied to overcome the backward viscous force. ठीक है, तो इस motion को बनाए रखने के लिए, ठीक है, an external force has to be applied. इसको एक external force लगेगा. ठीक है, आप समझो, मैं आपको दो सिनेरियो दे रहा हूँ, मूविंग स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, रिवर है कोई रिवर, ठीक है, दो सिनेरियो दे रहा हूँ. एक आपका भाई साहब ये रिवर है देखो, ठीक है, एक आपका मतलब एकदम पहाड़ी की चोटियों से आता हुआ रिवर है, ठीक है, ये इसका फ्लोर बेड है, और एक भाई साहब डीप रिवर है, डीप. बताओ किसका स्पीड ज़्यादा रहेगा? इसका स्पीड ज़्यादा रहेगा. क्यों बता सकते हो? हाँ नहीं छोड़ो, ऊपर से आ रहा है, छोड़ो ऊपर से आ रहा है, ऐसा ज़्यादा करके होता है. तो डीप नहीं है तो क्या होगा? नहीं, और बोलो. ये डीप नहीं है, इसका स्पीड ज़्यादा होगा, राइट. ये डीप है तो इसका स्पीड कम होगा. क्यों? एरिया नहीं 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 नहीं. देखो अभी आपने क्या देखा, जितना आपका भाई साहब डेप्थ होगा उतने लेयर्स होंगे, और जितने आपके लेयर्स होंगे उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, तो उतना ज्यादा आपका स्पीड क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा. ठीक है, यहाँ पे भाई साहब लेयर्स कम है तो विस्कस ड्रैग आपका कम है, जिसकी वजह से फट से जाएगा. ये समझ में आ रही है? और इसीलिए आप देखोगे ज्यादा करके पहाड़ियों की चोटियों से जो उतरते हुए रिवर्स हैं वो बहुत स्पीड में रहते हैं, क्योंकि वो इंक्लाइंड प्लेन में है. लेकिन अगर वो फ्लैट प्लेन पे भी होते तो भी बहुत ज्यादा जोर से मूव करते. ठीक है, आपका भाई साहब जितना डेप्थ कम होगा उतना स्पीड ज्यादा होगा. ठीक है, क्योंकि उतना ही आपका भाई साहब लेयर्स में आपका फ्रिक्शन या विस्कस ड्रैग कम होगा. जैसे लेयर्स आपके बढ़ेंगे, सबसे ज्यादा स्पीड इस लेयर का होगा, क्योंकि इसको सिर्फ ये वाला फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है. समझ में आ रहा है? इस वाले लेयर पे आते हैं, इस वाले लेयर पे ध्यान देना, इस वाले लेयर पे, इस वाले लेयर पे इसके ऊपर वाला और इसके नीचे वाला दोनों भी फ्रिक्शन क्रिएट कर रहे हैं. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके. इस वाले पे आते हैं, इस वाले पे भी इसके ऊपर वाला और इसके नीचे वाला. तो आप जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे, एज एंड व्हेन यू गो डीपर द विस्कस ड्रैग इज गोइंग टू इंक्रीज वेरी मच. तो आप बता सकते हैं कि बहुत डीप अगर कोई पानी है तो ये वाला पानी मतलब आगे जाएगा ही नहीं, एकदम ठहरा हुआ पानी रहेगा ऑलमोस्ट. क्या ये समझ में आ रहा है पीपल? ठीक है, ओके. सो दीज आर बेसिकली द, तो सबसे ज्यादा स्पीड आपकी मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे होगी, और जो बॉटम मोस्ट लेयर होगा उसकी ऑलमोस्ट जीरो स्पीड होगी. तो जितना ज्यादा आपका डेप्थ होगा उतना ऑटोमेटिकली भाई साहब स्ट्रीम का जो मूविंग स्पीड है वो कम हो जाएगा. आर वी क्लियर? बिकॉज आपका विस्कस ड्रैग बढ़ता ही जाएगा. ठीक है, ओके. एग्जांपल्स ऑफ विस्कोसिटी भाई साहब, क्या क्या एग्जांपल्स हैं? व्हेन यू स्टर अ लिक्विड कंटेन्ड इन अ बीकर विद अ ग्लास रॉड लिक्विड. ठीक है, तो अगर आप स्टर कर रहे हैं, ठीक है, अगर समझ लो कोई लिक्विड है और उसको आप स्टर कर रहे हैं, ठीक है, इट स्टार्ट रोटेटिंग इन. तो अगर बाल्टी भर पानी में भी हम लोग तो यही करते थे भाई साहब, हमारे पास मोबाइल नहीं था, जितने सब अटपटक गेम थी हम वही करते थे. ऐसे बाल्टी नहाने जाने का और बाल्टी में ऐसे घुमा देने का, वो घूम रहा है. ठीक है, तो यही सब खेल थे हमारे भाई साहब. ठीक है, तो अगर आप ऐसा करोगे तो घूमेगा ये बहुत जोर से, जब 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 जब. ठीक है, when we stir a liquid contained in a beaker with a glass rod, it starts rotating in coaxial cylindrical layers. तो ऐसे coaxial cylindrical layers, और फिर कागज के नाव दिखाने का, ठीक है, वो नीचे जाएगा. Stop stirring, the speed of different layers gradually decreases. तो आपका देखो, आपने अगर उस लिक्विड को घुमाकर छोड़ दिया है तो अपने आप कैसे रुक जाता है? वो अपने आप इसलिए रुकता है क्योंकि हर लेयर दूसरे लेयर के मूवमेंट को अपोज कर रहा है, एक विस्कस ड्रैग क्रिएट हो रहा है, जिसके वजह से भाई साहब वो रुकेगा. ठीक है, क्लियर है? When we stop stirring, the speed of different layers gradually decreases, and finally the water comes to rest, showing that an internal friction comes into play which destroys the relative motion between. तो ये भाई साहब अपने आप ही, आपने बाल्टी में पानी घुमाकर छोड़ दिया है, पहले तो बहुत जोर से घूमेगा, फिर धीरे धीरे आपको दिखेगा भाई साहब अपने आप ही रुक गया. किसने इसको रोका? इसके खुद के विस्कस ड्रैग ने इसको रोका है. ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट लेयर्स में एक फ्रिक्शन क्रिएट हो गया जिसकी वजह से ये रुक गया है. ठीक है, क्लियर है? When we swim in a pool of water, we experience some resistance to our motion. This is on account of viscous forces of water. जैसे आपको बोलते हैं ना कि स्विमिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, क्योंकि देखो कोई भी एक्सरसाइज जब आप करते हो, ठीक है, जिम में जाकर उठा रहे होगे वेट्स या दौड़ रहे होगे, तो जितना आपका रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होगा उतने ज़्यादा आपके मसल्स एक्टिव होंगे.
ठीक है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मतलब क्या है, आप जैसे समझ लो भाई साहब पुशअप्स कर रहे हो, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, या पुलअप कर रहे हो भाई साहब, ठीक है, ऐसा कुछ कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, अपने बॉडी के वेट को ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर ले जा रहे हो, सो इट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन योर मसल्स, ठीक है। ये आपके मसल्स में ज़्यादा खून फेंकेगा और आपके मसल्स और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, तो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसी तरह से जब आप भाई साहब आप ऐसे हवा में चलते जाओ या हवा में लेटे रहो भाई साहब और ऐसे ऐसे करते रहो, ठीक है, कुछ नहीं होगा भाई साहब। लेकिन वही चीज़ आप वाटर में जाकर करोगे तो आधे घंटे में आप अच्छे खासे थक जाओगे, ठीक है। ऑल्दो यू आर इन अ वेरी कूल एनवायरनमेंट यू विल बी वेरी टायर्ड, ठीक है। स्विमिंग आपको बहुत एक्सर्ट करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप तैर रहे हो तो आप भाई साहब पानी की लहरों में एक मोशन क्रिएट कर रहे हो, और जब ये मोशन क्रिएट हो रहा है देयर इज अ विस्कस ड्रैग विच इज गेटिंग क्रिएटेड, आप उस फ्रिक्शन को ओवरकम कर रहे हो। हालांकि जब जमीन पे भी आप चल रहे हो तो भी आप फ्रिक्शन इनकाउंटर कर रहे हो, लेकिन उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं, ठीक है। जमीन पे टेरेस्ट्रियल फ्रिक्शन को अगर आपको एक्सपीरियंस करना है, अगर फ्लूइड फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, तो आप साइकिल चला रहे हो, कोई बड़ी गाड़ी नहीं, एक साइकिल चला रहे हो और बहुत जोर से हवा चल रही है, क्या वो आपके मूवमेंट को इम्पैक्ट करेगी? यस करेगी। हाँ शायद 2 व्हीलर ना करे, शायद भाई साहब आपका 4 व्हीलर ना करे, लेकिन अगर बहुत जोर से हवा चली है तो साइकिल का मूवमेंट इम्पैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि हवा के लेयर्स में विस्कोसिटी है, ठीक है, एंड दैट बेसिकली क्रिएट्स। इसीलिए आपके जितने भी साइकिल रिलेटेड सवाल होते हैं उसमें देखो ये ब्रैकेट में लिखा रहता है नेग्लेक्ट एयर फ्रिक्शन, ठीक है, ऐसा लिखा रहेगा नेग्लेक्ट एयर फ्रिक्शन, क्योंकि वो फ्रिक्शन इंपैक्ट करेगा। ओके, इफ वी पोर वाटर एंड हनी इन सेपरेट फनल्स, वाटर कम्स आउट रेडिली फ्रॉम द होल इन द फनल व्हाइल हनी ट्रिकल्स डाउन ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो आपने भाई साहब 2 बीकर्स ले लिए, लेट्स से इसमें भाई साहब आपने क्या भर दिया, लेट्स से आपने भर दिया भाई साहब वाटर, और इसी सेम लेवल पे आपने भर दिया भाई साहब यहाँ पे हनी, ठीक है। तो हमको मालूम है कि हनी भाई साहब बहुत गाढ़ा होता है, ठीक है। आप देखोगे अगर समझ लो ये हनी है और ये वाटर है, ये वाटर जरा से नीचे जाएगा, ठीक है, लेकिन ये ट्रिकल डाउन करके जाएगा, इट विल एक्चुअली ट्रिकल डाउन। क्यों ऐसा हो गया है? क्योंकि ये जितना आपका डेंसिटी बढ़ेगा उतना विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, उतना ही मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, उतना ही मूवमेंट धीरे हो जाएगा जितनी आपकी डेंसिटी बढ़ेगी, और इसीलिए इसके अंदर इतनी ज़्यादा विस्कोसिटी है, ठीक है, कि भाई साहब ये ऐसे ही गिरेगा। मरकरी का भी ऐसा ही होगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप ही गिरेगा वो, ठीक है। वाटर जर्रा से गिरेगा, ऐसा नहीं है कि वाटर के अंदर विस्कोसिटी नहीं है, लेकिन कंपैरेटिव विस्कोसिटी कम है। जितना ज़्यादा आपका गाढ़ा होता जाएगा फ्लूइड उतना ज़्यादा उसकी विस्कोसिटी भाई साहब बढ़ती जाएगी, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। सो इफ वी पोर वाटर एंड हनी इन सेपरेट फनल्स, वाटर कम्स आउट रेडिली फ्रॉम द होल in the funnel while honey trickles down drop by drop very slowly. This is because honey is much more viscous. Viscous मतलब गाढ़ा है, उसमें ज़्यादा friction है, ठीक है, than water. The relative motion between the layers of honey is strongly opposed. तो ये जो relative motion हो रहा है between the layers of honey that is strongly opposed. जितना ज़्यादा density बढ़ेगा liquid का भाई साहब उतनी ज़्यादा। तो अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि is it easier to swim in water or is it easier to swim in honey? So obviously it is easier to swim in water क्योंकि इसका viscous drag कम है, ठीक है। The cloud particles fall down very slowly on account of the viscosity of air and hence seen floating in the sky. तो आपके cloud particles क्या हैं? ये ऐसे बहुत धीरे धीरे गिर रहे हैं, एक्चुअली वो आपके सर के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, लेकिन जब आते हैं तो उनकी डेंसिटी बहुत कम हो जाती है। तो ये जो क्लाउड पार्टिकल्स हैं ऊपर, ठीक है, दे फॉल वेरी स्लोली, ठीक है, ये फॉल वेरी स्लोली बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी। वी कैन वॉक फास्ट इन एयर बट नॉट इन वाटर, ठीक है। आप भाई साहब वाटर में स्विमिंग पूल में उतनी जोर से नहीं चल पाएंगे, समझ लो इतने हाइट तक ही हैं, मतलब आपको स्विमिंग करने की जरूरत नहीं, आप चल सकते हैं, ठीक है, और उतने ही मतलब एयर में अगर वॉक करेंगे तो आपकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि एयर का जो विस्कस ड्रैग है और वाटर का जो विस्कस ड्रैग है उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है, ठीक है। सो दिस इज बिकॉज विस्कोसिटी ऑफ एयर इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ वाटर। क्लियर है पीपल? क्लियर है भाई साहब? ओके ओके, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया भाई साहब यहाँ पे आपका डेरिवेशन नहीं है, लेकिन हम कम से कम इतना बोल सकते हैं कि कहाँ से ये आ रहा है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, अभी हम इसके बारे में पूछेंगे, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज इट बेसिकली? लेट्स से कंसीडर 2 लेयर्स ऑफ P and Q, ठीक है, एज शोन देयर। सपोज अ लिक्विड इज फ्लोइंग स्टेडीली, तो एक लिक्विड है जो फ्लो कर रहा है बहुत स्टेडीली, मतलब आगे जा रहा है, ठीक है। देयर आर 2 लेवल्स ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग स्टेडीली इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल लेयर्स ऑन अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस है और 2 लेयर्स हैं पैरेलल ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। ओके, कंसीडर 2 लेयर्स, ठीक है, एट डिस्टेंसेस x एंड x प्लस dx। तो इस वाले की डिस्टेंस फिक्स्ड सरफेस से कितनी है?
x प्लस डी एक्स है और लेयर p की डिस्टेंस कितनी है x। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। फ्रॉम द सर्फेस मूविंग विद वेलोसिटीज, इसकी वेलोसिटी कितनी है v, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी क्योंकि अपर लेयर है, इसको फ्रिक्शन या विस्कस ड्रैग कम मिलेगा, ठीक है। क्लियर है, ओके। तो इसकी वेलोसिटी है v प्लस डी वी और इसकी वेलोसिटी है v। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, ठीक है, ओके। तो अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, व्हाट कैन बी से इज दैट dv by dx is the rate of change of velocity with distance in the direction of increasing distance and is called velocity gradient. इसको अपन velocity gradient बोलेंगे, dv by dx। तो rate of change of velocity with distance is called dv by dx और velocity gradient, ठीक है, ओके। According to Newton, a force of viscosity acting tangentially between two layers, tangentially मतलब ऐसे छूटा हुआ निकल रहा है इसको, ठीक है, ऐसे tangentially जा रहा है, is proportional to the area of the layers, मतलब इन दोनों लेयर्स के एरिया पे ये प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना बड़ा एरिया रहेगा उतना ज्यादा ये फोर्स होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन द फोर्स ऑफ विस्कोसिटी एक्टिंग टेंजेंशियली बिटवीन टू लेयर्स, दो लेयर्स के बीच में जो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी एक्ट कर रही है, ठीक है, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, ये भाई साहब एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। इन दोनों पे भाई, इन दोनों को कंबाइन किया तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, और इसी को हम भाई साहब जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो इसमें कांस्टेंट लगा देंगे एंड दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, a dv by dx। अब ये नेगेटिव क्यों लगाया है आपने बताइए, why negative, where this is the coefficient of viscosity of the liquid, it depends on the nature of the liquid and gives a measure of viscosity. Negative sign shows that the viscous force acts in a direction opposite to the direction of motion of the liquid. तो आपका भाई साहब अगर मोशन इधर है लिक्विड का तो विस्कस फोर्स इज एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ए की वैल्यू अगर 1 हो गई, dv by dx की वैल्यू 1 हो गई, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, ठीक है। सो हेंस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड मे बी डिफाइंड as the tangential viscous force required to maintain a unit velocity gradient। ये भाई साहब डिफाइन करने का तरीका है, ठीक है, डिफाइन करने का तरीका है ऑफ यूनिट एरिया। तो ले देखिए भाई साहब आप क्या बोलेंगे, the viscous force which is acting is equal to negative of coefficient of viscosity for it into भाई साहब dv by dx velocity gradient, ठीक है, सॉरी एरिया, ठीक है, दिस f is equal to minus n a dv by dx, ठीक है, where a is basically the area between the liquids and dv by dx is the velocity gradient, ठीक है। velocity gradient मतलब rate of change of velocity per unit distance, ठीक है। इसका कोई आपको मतलब डेरिवेशन नहीं है, ठीक है, the derivation is not in your course। तो velocity gradient भाई साहब क्या हो जाएगा, dv by dx, ठीक है, ओके। न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर विस्कस फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लेयर्स, क्या बोले, क्या बात कर रहे हो, ओहो चलो कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो आपका भाई साहब रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, f by a dv by dx, ठीक है। माइनस को अगर हम ना कंसीडर करें तो अपन देख लेते हैं यहाँ पे डायमेंशन, f की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब mlt minus 2, ठीक है। a की वैल्यू क्या हो जाएगी l स्क्वायर, dv by dx, dv की वैल्यू हो जाएगी lt minus 1, dx की वैल्यू सॉरी अपना dx की वैल्यू हो जाएगी l और dv की वैल्यू हो जाएगी lt minus 1। ये सारा काम झाम करेंगे तो ये आ जाएगा, समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है। अभी आपका भाई साहब इसका यूनिट क्या है, पॉइज, ठीक है, व्हाट इज पॉइज, ठीक है। तो ये आपका 1 पॉइज हो गया, ठीक है, 1 पॉइज इज इक्वल टू 1 डाइन अपॉन 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 डाइन पर सेंटीमीटर, सीजीएस यूनिट है भाई साहब। द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड, तो आपका भाई साहब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज f by a dx by dv, सिंपल है भाई साहब ये, ठीक है। और इसका सीजीएस यूनिट हो गया भाई साहब आपका पॉइज। अभी पॉइज मतलब क्या हो जाएगा, 1 पॉइज विल बी इक्वल टू भाई साहब यहाँ पे क्या है, सीजीएस में ये हो जाएगा डाइन, ये हो जाएगा भाई साहब आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, और dx का वैल्यू कितना होगा भाई साहब सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर भाई साहब कैंसिल हो गया, तो अपना कितना आ गया देखो, 1 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, ओके। द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड इज सेड टू बी 1 पॉइज इफ अ टेंजेंशियल फोर्स ऑफ 1 डाइन per centimeter square of the surface is required to maintain a relative velocity of
1 सेंटीमीटर पर सेकेंड बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द लिक्विड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। एसआई यूनिट भाई साहब क्या हो जाएगा, पॉइज़ुअल, ठीक है, जिसको हम, ठीक है, एसआई यूनिट इज एंड इज कॉल्ड डेकापॉइज और पॉइज़ुअल, ठीक है। डेकापॉइज और पॉइज़ुअल क्या हो जाएगा भाई साहब, 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपका 1 डेकापॉइज, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर एंड 1 पॉइज, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, 1 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। ये दोनों भाई साहब आपके यूनिट्स हो गए, ओके। तो 1 पॉइज़ुअल और 1 डेकापॉइज़ुअल कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 10 पॉइज, इसलिए डेका बोल रहे हैं हम इसको, ठीक है। ये कितना बराबर होगा इसके 10, मतलब अगर आपको कन्वर्जन करना है, ठीक है, डाइन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को अगर आपको न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर करना है, कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। डेकापॉइज और पॉइज़ुअल समझ में आ रहा है, ओके। सो वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया आपका dv by dx। न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर विस्कस फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लेयर्स इज इतना। सीजीएस सिस्टम में भाई साहब आपका ये हो गया 1 डेकापॉइज इज इक्वल टू 1 पास्कल पर सेकंड भी लिख सकते हैं, है ना। 1 डेकापॉइज मतलब किसका हो गया, यूनिट इन एसआई। तो डेकापॉइज में क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और आपका इसका हो जाएगा, इसका मतलब पास्कल, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है आपका पास्कल, तो पास्कल सेकंड हो गया, ठीक है, 1 पास्कल सेकंड। दिस विल बी इक्वल टू 10 पॉइज, और 10 पॉइज की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 10 पॉइज मतलब हो जाएगा आपका डाइन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर। डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पॉइज, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन हम पीपल, हम बहुत बढ़िया भाई साहब, ओके। अ मेटल प्लेट भाई साहब कितना है, 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर रेस्ट ऑन अ लेयर ऑफ कैस्टर ऑयल 1 मिलीमीटर थिक whose coefficient of viscosity is 1.55 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो इस एरिया को भाई साहब आपको या तो इसको चेंज करना पड़ेगा। फाइंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द प्लेट विद अ स्पीड ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एरिया भाई साहब आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, देखो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको आप कन्वर्ट करेंगे एसआई सिस्टम में, दैट इज मीटर स्क्वायर में। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर स्क्वायर, सॉरी 10⁻⁴। तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। क्लियरम, ओके। चलिए भाई साहब, यहां तक तो होता है भाई साहब आपका। दिस dx की वैल्यू कितनी है, 1 मिलीमीटर, तो ये हो गया भाई साहब आपका 10⁻³ मीटर, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितनी है आपकी, 1.55 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, 1.55 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां पे ये दिया हुआ है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। dx की वैल्यू 1 मिलीमीटर में, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई साहब, मीटर्स में, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच, 10⁻³ मीटर। क्लियरम पीपल, ठीक है। dv की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 2 इंटू 10⁻²। तो f की वैल्यू तुम्हारे इसके बाद क्या है, 5 से 6.5 है ना, 5 to 6:30 है ना, ठीक है, ओके। तो आपका dv का वैल्यू 2 इंटू 10⁻², ये सेंटीमीटर पर सेकेंड है, इसको आप क्या करेंगे भाई साहब, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर, बहुत बढ़िया। तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी a dv by dx 1.55 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻⁴ dv by dx 2 इंटू 10⁻⁻², 1 इंटू 10⁻⁻3, दैट गिव्स यू, दिस इज द वैल्यू इन न्यूटन्स। क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं आप लोग। चलो भाई साहब इसको करो जरा फटाफट। पॉइज और पॉइज़ुअल में आपका भाई साहब सिर्फ समझना है, ठीक है। डेकापॉइज, विस्कोसिटी यहां पे दिया हुआ है 0.01 पॉइज, वो उसकी वैल्यू सीजीएस में 200 डाइन्स हो गई। dv कितना हो गया भाई साहब, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू एरिया dv by dx। अगर आपको भाई साहब dx निकालना है तो इसको इधर लेकर आएंगे और f को इधर कर दीजिए भाई साहब, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच, 0.05 सेंटीमीटर। ओके, चलिए भाई साहब फटाफट इस सवाल को करना है। अ फ्लैट स्क्वायर प्लेट ऑफ 20 सेंटीमीटर मूव्स ओवर अनदर सिमिलर प्लेट विद अ थिन लेयर ऑफ 0.4 सेंटीमीटर ऑफ अ लिक्विड बिटवीन देम। अभी ये दो प्लेट्स हैं भाई साहब, इनके बीच में कोई लिक्विड है, तो एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर स्लाइड कर रहा है, ठीक है।
If a force of 1 kg weight moves one of the plates uniformly with a velocity of 1 meter per second, calculate the coefficient of viscosity of the liquid. तो आपको एरिया मालूम है, यहाँ पे उतना ही एरिया इन दोनों लिक्विड्स के, मतलब लिक्विड का भी होगा, समझ में आ रहा है? दोनों प्लेट्स के बीच में जो एरिया है वही लिक्विड का भी एरिया होगा, ठीक है? सो इफ वी क्विकली कैलकुलेट दिस, यहाँ पे भाई साहब एरिया जो होगा दैट इज 20 into 20, दैट इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट गिव्स यू हाउ मच, 400 into 10⁻⁻⁴ मीटर का स्क्वायर, ठीक है? dx की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, देखो dx इज 0.4 सेंटीमीटर, ठीक है? 0.4 सेंटीमीटर। अनदर सिमिलर प्लेट विद अ थिन लेयर ऑफ 0.4 सेंटीमीटर, dx की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई भाई साहब? dx मतलब समझ ना, ये लेंथ, ठीक है? तो लेंथ ऑफ द लिक्विड इज हाउ मच, 0.4। दो लेयर्स के बीच में जो लेंथ होता है उसकी वैल्यू है dx यहाँ पे, ठीक है? सो dx की वैल्यू 0.4 into 10⁻⁻² मीटर। फोर्स यहाँ पे कितना है, 1 kg वेट, 1 kg वेट मतलब कितना होता है, 1 kg into 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज 9.8 न्यूटन। और dv की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? तो फोर्स की वैल्यू अगर हम बात करें, विस्कोसिटी a dv/dx, विस्कोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, तो फोर्स अपॉन एरिया, सारा चीज जो आपने यहाँ पे किया है वो किसमें है, SI यूनिट में है। तो आप इसको भाई साहब क्या लिखेंगे, पास्कल सेकेंड या डेकापॉइस, समझ में आ रहा है भाई साहब? और अदरवाइज वी विल बी पॉइसविल, ठीक है? तो आपका पास्कल सेकेंड लिख सकते हैं आप इसको, क्लियर है? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कितना हो गया भाई साहब आपका, पास्कल, और ये हो गया सेकेंड, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। Velocity of water in a river is 180 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? नियर द सरफेस, देखो 180 जहां पे भी दिया रहेगा ना, आपको मालूम होना चाहिए कि अगर किलोमीटर पर आवर को 1 किलोमीटर, अगर भाई साहब अपन 1 किलोमीटर पर आवर को अगर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? तो किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दिया अपन ने, तो ये हो गया आपका dv, है ना? dv की वैल्यू आ गई। इफ द रिवर इज 5 मीटर डीप, तो आपका क्या हो जाएगा, dx की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी भाई साहब, 5 मीटर, ठीक है? फाइंड द शेयरिंग स्ट्रेस बिटवीन हॉरिजॉन्टल लेयर, कुछ नहीं है शेयरिंग स्ट्रेस, मतलब ये एक लेयर है, देखो समझो अगर मैं ये एक खाली सा डब्बा है और इस पर शेयरिंग स्ट्रेस की बात करूं, तो इसके टॉप लेयर को धक्का मारने से जो स्ट्रेस क्रिएट होता है उसको अपन बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है? तो शेयरिंग स्ट्रेस विल बी बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर पहले हम बात करेंगे फोर्स की, तो फोर्स अपॉन एरिया इज शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है? तो यंग्स मॉडुलस में पढ़ा है ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन होता है इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो आपका शेयरिंग स्ट्रेस मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो पहले तो अपन फोर्स को निकालेंगे, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, विस्कोसिटी इंटू dv/dx, तो विस्कोसिटी इंटू एरिया इंटू dv/dx। तो अगर आपको भाई साहब शेयरिंग स्ट्रेस निकालना है, कुछ नहीं करना है, इस a को इधर डाल दो, तो F/A, तो ये हो जाएगा आपका विस्कोसिटी इंटू dv/dx। विस्कोसिटी की वैल्यू आपको दी हुई है भाई साहब, ठीक है? तो ये करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल भी लिख सकते हैं, ठीक है? क्लियर है? ओके ओके ओके। ओके, देखो यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है, अ मेटल प्लेट, इसकी एरिया कितनी है भाई साहब, 0.1 मीटर स्क्वायर इज कनेक्टेड टू अ 0.01 kg मास वाया स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर एन आइडियल पुली, हम ज्यादा करके पुली में फ्रिक्शनलेस और मासलेस बोलते हैं, अ लिक्विड विद अ फिल्म ऑफ थिकनेस। तो यहाँ पे भाई साहब क्या है, लिक्विड है, ठीक है? देयर इज अ लिक्विड आउट हियर, और इसका थिकनेस आपको दिया हुआ है, ठीक है? ऑफ थिकनेस 0.3 मिलीमीटर इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट एंड द टेबल। इसका एरिया दिया हुआ है, मतलब लिक्विड का भी एरिया यही हो जाएगा, ठीक है? ओके, व्हेन रिलीज द प्लेट मूव्स टू द राइट विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ, इसका स्पीड कितना है भाई साहब, 0.085 मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा है भाई साहब। इसका लॉजिक क्या हो जाएगा, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है या स्पीड से मूव करती है, इसका मतलब उस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसका जो फोर्स इस तरफ है उसका फोर्स इस तरफ बराबर है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है? तो इस तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होगा, विस्कस फोर्स, और इस तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होगा भाई साहब, इसका फोर्स, है ना? इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो टेंशन डेवलप होगा इसमें, और टेंशन कितना होगा, देखो यहाँ पे इसको टेंशन को पहले निकाल लेते हैं। टेंशन आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे टेंशन हो जाएगा 0.01 इंटू जी, है ना भाई साहब, और यही फोर्स हो जाएगा जो इस पे लग रहा है।
इस बॉडी को अगर आप देखोगे तो भाई साहब इस पे विस्कस फोर्स इस तरफ और टेंशन इस तरफ, और क्योंकि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो टी और एफ भाई साहब क्या हो जाएंगे आपके बराबर, ठीक है। तो टी ऑफ एफ आपका बराबर हो जाएगा, वही है देखो यहाँ पे एफ और टी आपका बराबर हो गया, ठीक है। तो एम जी मतलब कितना हो जाएगा 0.01 इंटू 9.8, दैट इज 9.8 इंटू 10⁻² न्यूटन, ठीक है। टेकिंग वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो अगर आपका भाई साहब ऐसा है तो आपका आप यहाँ पे दिस कैन बी रिटन एज एफ बाई ए डी एक्स बाई डी वी। एफ की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी, ठीक है। तो 9.8 इंटू 10⁻², पहले आपने एफ की वैल्यू निकाली, कैसे निकाली, एफ को टी के बराबर करके, टी कितना है एम जी के बराबर। देखो दो बॉडीज हैं, इस बॉडी पे आओ तो इस बॉडी पे अगर आओगे तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, यहाँ पे ये एम जी है और इधर भाई साहब टी है, तो टी की वैल्यू किसके बराबर बोलो, एम जी के बराबर। और अगर तुम इधर आते हो तो ये वाली बॉडी देखो, कोई बॉडी अगर जीरो एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो उस पर लगता हुआ फोर्स जीरो है, लेकिन क्या इस बॉडी पे लगता हुआ फोर्स जीरो है, नहीं, रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। रिजल्टेंट फोर्स जीरो कब होगा, जब इसका जो इस तरफ फोर्स लग रहा है और इस तरफ फोर्स दोनों बराबर हो। मतलब इस तरफ फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू टी, है ना भाई साहब, इस तरफ वाला फोर्स टी ही होगा और इस तरफ वाला फोर्स क्या होगा आपका विस्कस ड्रैग, ठीक है। सो आपका F और T बराबर, मतलब पहले अपन ने निकाल लिया विस्कस फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर, विस्कस फोर्स भाई साहब इतना लग रहा है। अब अपन फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला के हिसाब से F इज इक्वल टू, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी A इंटू डी वी बाई डी एक्स। डी एक्स की वैल्यू अपन को मालूम है क्या है, फिल्म ऑफ थिकनेस 0.3 मिलीमीटर। मिलीमीटर को अपन करेंगे कन्वर्ट मीटर में, तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई साहब, ठीक है। देखो 0.3 इंटू 10⁻³ कर दिया, ठीक है। ओके, ये हो गया भाई साहब आपका क्या, डी एक्स, ओ सॉरी डी एक्स बाई डी वी, डी एक्स बाई डी वी, ठीक है। तो आपका ए डी एक्स बाई डी वी, तो ये डी एक्स भाई साहब क्या हो जाएगा, डी एक्स की वैल्यू हो गई 0.3 इंटू 10⁻³। डी वी की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू हो गई है, डी वी की वैल्यू आपको दी हुई है, द वेलोसिटी दैट इज 0.085 मीटर पर सेकेंड। ए की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई 0.10, क्योंकि यही आपका मीटर स्क्वायर है, क्लियर है। तो अगर हम इसको पूरा करेंगे तो पास्कल सेकंड हो गया। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पेपर, हम क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है, जा सकते हैं।